Hi, good morning, and my name is Lalit Hamija. Very good morning and warm welcome to all the participants, our panelists, and the entire TSPL team. Thank you all for joining today's very informative session, part of an exclusive Business Connect webinars, BizNext, the webinar series on growth for MSME, technology, and beyond. Today, we will be covering topics to ensure seamless business operations, assisting you in your quest for a simplified business journey. So with this, I would like to introduce our first speaker of the day, Shri Niranjan Jainji. Shri Niranjan Jainji is the Chairman, National Advisory Board of MSME and Startup Forum, Bharat. It is an international organization founded to facilitate entrepreneurs and businesses with the vision to provide a platform for MSMEs, startups, entrepreneurs, businesses, and professionals to connect and network. Shri Niranjan Jain hails from Ahmedabad, Gujarat, and is also a renowned assistant by him in different fields for the upliftment of the society. He is a subject matter expert in MSME domain and part of our conducting workshops and delivering presentations on the subject. He feels pleasures in guiding and assisting the MSMEs, businessmen, and especially the first generation entrepreneurs in obtaining loans, claiming subsidies and incentives, and the procedural compliances. He conducts research-based study in regular manner and design presentation and awareness contents on the benefits and privilege available for the MSMEs from various central and state government schemes. He also takes up issues with the MSME ministries related to the grievance of MSMEs and gives suggestions from his side. So without further delay, let's now hear from the subject matter expert himself. Over to you, Niranjan Jainji. Thank you, Lalitji. I welcome all the participants on this webinar on various schemes of loans available for MSMEs and first generation entrepreneurs and businessmen, etc. Again, this presentation is meant for the stakeholders, MSMEs which are aspiring micro manufacturing and service units, MSMEs aspiring small manufacturing and service unit. Means there are three categories, micro, small and medium. So there are different and various schemes for category wise. So the units to come for those, there are schemes of loan, we can say for micro and for small also. And for existing micro and small manufacturing and service units, उनके लिए भी योजनाएं हैं लोन की, अगर उनको एक्सपांशन में जाना है. SC ST यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वुमन एंटरप्राइजेस के लिए अलग से भी योजना है, उसकी चर्चा अभी हम करेंगे. MSMEs एस्पायरिंग मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस यूनिट्स, मीडियम कैटेगरी की जो यूनिट्स हैं उनके लिए भी योजनाएं हैं, उन पर चर्चा होगी. एग्जिस्टिंग एंड एस्पायरिंग बिजनेस इंक्लूडिंग स्मॉल बिजनेस, बोथ एस्पायरिंग एंड एग्जिस्टिंग, छोटे छोटे व्यापारी या व्यापारी जो वर्तमान में है, विद्यमान है, या फिर वो कुछ बिजनेस करने की सोच रहे हैं, उनके लिए क्या योजना है, उनको भी कवर किया गया है. और अनएम्प्लॉयड यूथ नीड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ऐसे हमारे नौजवान जो चाहते हैं कि हम स्वयं पैरों पर खड़े हों, तो उनके लिए राज्यों की अलग अलग योजनाएं हैं लोन की, वो उस पर चर्चा करेंगे. और इन योजनाओं में हम जो कवर करेंगे वो प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये एक लोन की योजना है बहुत पॉपुलर. दूसरी योजना मुद्रा लोन, और तीसरी योजना है सेकंड लोन फॉर एग्जिस्टिंग PMEGP एंड मुद्रा यूनिट्स. जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम या फिर मुद्रा लोन के तहत पहले लोन लिया हो, तो उनके लिए एक नई योजना है जिसके अंदर अब वो एक्सपांशन के लिए लोन ले सकते हैं, उस पर जो है दृष्टिपात करेंगे. और स्कीम ऑफ लोन फॉर MSEs, माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट्स के लिए अलग से एक योजना है जिसका नाम है CGT MSE एंड स्टैंड अप इंडिया. ये दो योजनाएं हैं, इन दोनों पर जो है पूरी तरीके से चर्चा होगी. और इसके अलावा सिडबी की योजनाएं लोन की क्या क्या है, सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उनकी क्या क्या योजनाएं हैं उन पर जो है चर्चा करेंगे.
इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे होती है किसी भी स्कीम के तहत, उसका एक प्लेटफॉर्म है PSB loans in 59minutes.com। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है, इस पर किस तरीके से और कौन लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और इसके अलावा बहुत शॉर्ट में कुछ योजनाओं की जानकारी हम जो राज्य सरकारों के द्वारा यूथ्स के लिए चलाई जाती है, जो अनएम्प्लॉयड हैं और जो अपनी यूनिट्स खोलना चाहते हैं, उनके लिए कुछ योजनाएं, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, अभी हमने बात की कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम की, तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये माइक्रो, स्मॉल और मीडियम है क्या। MSME एक्ट 2006 के तहत माइक्रो, स्मॉल और मीडियम की परिभाषा निर्धारित की गई है, और वो इन टर्म ऑफ अमाउंट है कि यदि एक यूनिट जो 1 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट करती है किसी भी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हो या सर्विस यूनिट में हो, तो इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रो। और इसी तरीके से यदि इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक का है, आइदर इन मैन्युफैक्चरिंग और इन सर्विस, तो वो स्मॉल कैटेगरी में आएंगी। और अगर 50 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है तो वो मीडियम कैटेगरी में आएंगे। साथियों, अभी हम चर्चा करेंगे पहली योजना, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये इसके अट्रैक्शंस क्या है, ये उस पर पहले दृष्टिपात करते हैं। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री, MSME मिनिस्ट्री का, और इसमें बहुत बड़ा बजट होता है। प्रतिवर्ष लगभग 2500 करोड़ के आसपास का बजट होता है। यानी जितनी भी बोरोइंग्स की नीड है देश के अंदर हमारे एंटरप्रीनियर्स को, वो इस योजना के तहत जो है वो फुलफिल होती है। अट्रैक्टिव सब्सिडी, सिर्फ लोन ही नहीं दिया जाता है, अभी तो सब्सिडीज भी दी जाती हैं, और वो दोज आर वेरी अट्रैक्टिव एट देयर रेट ऑफ सब्सिडी इज क्वाइट अट्रैक्टिव, और इजी लोन प्रोसीजर है। ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है और बहुत सिंपल तरीके से आप जो है इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। और ये योजना पूरे देश में हिमालय से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और कच्छ से लेकर जो है नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन तक ये योजना इफेक्टिव है, प्रभावी है। इसके तहत कहीं भी देश का नागरिक किसी भी स्टेट में रहता हो अप्लाई कर सकता है। साथियों, ये योजना जैसा मैंने अभी कहा, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस न्यू दिल्ली के द्वारा संचालित है, और इसका जो उद्देश्य है वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। और इसमें जो लोन मिलता है वो टर्म लोन का के शेप में मिलता है, और यदि हम चाहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या कैश क्रेडिट फैसिलिटीज, तो वो भी इस योजना के तहत अवेलेबल होती है। सब्सिडीज की अभी मैंने बात की थी रेट की, तो जनरल कैटेगरी के लिए 15% है, और जो शहरी क्षेत्र के हैं और ग्रामीण क्षेत्र से यानी रूरल सेक्टर से यदि कोई एप्लीकेंट है तो उनके लिए ये सब्सिडी 25% है। और स्पेशल कैटेगरी के लिए ये 25% एंड 35% रेस्पेक्टिवली फॉर अर्बन एंड रूरल एप्लीकेंट्स। अभी स्पेशल कैटेगरी में यहाँ हमें समझना होगा कि कौन कौन लोग कवर्ड हैं। देखिए, सरकारी योजनाओं में स्पेशल कैटेगरी के अंदर स्कीम टू स्कीम द डेफिनेशन ऑफ स्पेशल कैटेगरी वेरीज, लेकिन यहाँ पर कौन कौन शामिल है आइए वो समझते हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसीज, ये तो स्पेशल कैटेगरीज में हमेशा होते ही हैं। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटीज और ऑल दी वुमन, जितनी भी देश की महिलाएं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय या किसी भी वर्ग से हों, वो चाहे इसमें अप्लाई करना चाहती हैं, तो उनके लिए जो है ये 35% की सब्सिडी और 25% की सब्सिडी प्रोवाइडेड, वो अर्बन उसमें है या रूरल सेक्टर में है उनके लिए होगी। इसके अलावा स्पेशल कैटेगरी में जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं या हिली एरियाज के लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के जितने भी लोग हैं, उनको भी इस योजना में स्पेशल कैटेगरी के अंदर रखा गया है। इसमें मार्जिन मनी जो है बहुत कम रखी गई है, जनरल कैटेगरी के लिए 10% और स्पेशल कैटेगरी के लिए 5%। ये इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 90% या 95% अप टू 90% और 95% यू कैन अवेल ऑफ द लोन्स। जो सब्सिडी का है, मैं इसको भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा एक एग्जांपल से, कि यदि एक एप्लीकेंट ने 10 लाख रुपए का लिए एप्लीकेशन की है और उसकी एप्लीकेशन 10 लाख की सैंक्शन होती है,
तो उसे अगर वो रूरल सेक्टर से है और माइनॉरिटी कम्युनिटी या वुमन एंटरप्रेन्योर है, तो उसको 3.5 लाख रुपए आउट ऑफ 10 lakhs ऑफ द लोन अमाउंट 3.5 लाख जो है उसे सब्सिडी मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि उसे जो पे करना है वो 6.5 लाख रुपया अलोंग विद इंटरेस्ट पे करना है। इस तरह ये सब्सिडी मिल रही है। साथियों, इसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इस योजना में 25 लाख रुपए मैक्सिमम लोन मिलता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए। और यदि सर्विस यूनिट है या ट्रेडिंग के लिए जाना, कोई बिजनेस के लिए जाना है, तो 10 लाख रुपए तक लोन मिल सकता है। लेकिन ये योजना एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन के लिए नहीं है, ये सिर्फ न्यू बिजनेसेस के लिए है। यानी कि आप जो है एस्पायरिंग यूनिट्स जो आनी है या एस्पायरिंग बिजनेस कुछ है, तो उसके लिए ये योजना है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो देश का नागरिक है 18 वर्ष से ऊपर का, वो अप्लाई कर सकता है। एजुकेशन भी बहुत अधिक रिक्वायर्ड नहीं है। यदि मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 लाख रुपए से ऊपर की एप्लीकेशन है लोन की, और ट्रेडिंग या सर्विस यूनिट के लिए 5 लाख रुपए से ऊपर है, तो मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड इज 8th स्टैंडर्ड। सिर्फ 8वीं कक्षा तक यदि कोई एप्लीकेंट शिक्षित है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। पूरे इंडिविजुअल्स के अलावा इसके अंदर कुछ इंस्टीट्यूशंस को भी एलिजिबिलिटी है अप्लाई करने के लिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में कहीं इन्वॉल्व हैं, उन्हें ये लोन अवेल कर सकते हैं। उसके लिए वो भी एलिजिबिलिटी रखते हैं। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, इस योजना की जो इम्प्लीमेंटिंग या नोडल एजेंसी है वो खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन मुंबई है। और हर राज्य के अंदर खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज बोर्ड के ऑफिसेज हैं, और इनकी जो ब्रांचेस हैं वो हर राज्य के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर हैं, जिन्हें संपर्क किया जा सकता है इस योजना की ज्यादा डिटेल्स प्राप्त करने के लिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इस योजना के तहत लेंडिंग का काम करते हैं, लोन देते हैं, पब्लिक सेक्टर जितनी भी बैंक्स हैं सभी, रूरल बैंक्स, अप्रूव्ड कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइवेट शेड्यूल बैंक्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी, इसके अलावा भी और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस योजना के तहत लोन देने का काम करते हैं। इसमें नॉर्मल बैंक इंटरेस्ट लगता है, जो अभी हम ऐसा मान सकते हैं कि 8-9% से लेकर 12%, क्योंकि ये वेरी करता है। जो एप्लीकेंट है उसका सिबिल स्कोर कैसा है, उसकी रेटिंग क्या आ रही है, उसके अलावा जो लोन है वो सिक्योर्ड लोन है या अनसिक्योर्ड लोन है, उस पर जो है ये इंटरेस्ट रेट वेरी करता है। पेमेंट टर्म्स फ्लेक्सिबल होती है, यानी मोरेटोरियम पीरियड कितना रहेगा, उसके बाद क्या ईएमआईज रहेंगी, वो जो है नेगोशिएबल होती हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ कोर्स इज रिक्वायर्ड, ये मतलब जो है कोलेटरल नहीं होगा तो ये इस योजना के तहत आपको लोन नहीं मिलेगा। वैसे तो आरबीआई के जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार 10 लाख रुपए तक के लोन्स पर किसी भी तरह की कोलेटरल सिक्योरिटी जो है इंसिस्ट नहीं की जा सकती बैंक के द्वारा। लेकिन प्रैक्टिकली हम ये देख रहे हैं कि यदि 3 लाख रुपए से भी ऊपर की यदि लोन एप्लीकेशन है तो बैंक इंसिस्ट करती है कि आपको जो है गारंटी या जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी। ईडीपी ट्रेनिंग इज मैंडेटरी। इसमें जो खास बात है इस योजना में कि जो लोन आपका सैंक्शन हुआ है वो लोन रिलीज उसी केस में होगा जब आपने ईडीपी ट्रेनिंग यानी एंटरप्रेन्योर्स या एंटरप्राइज डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये अगर आपने लिया है तो और उसको सक्सेसफुली आपने ट्रेनिंग ली है, उसके बाद ही आपको लोन दिया जाएगा। सो एज बैंक ये गारंटी करती है या सरकार भी ये इंश्योर करने की कोशिश करती है कि आप जो है आराम से जो आपका बिजनेस करना चाहते हैं या यूनिट खोलना चाहते हैं वो सक्सेसफुली कर सकेंगे, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ एक चीज और समझने जैसी है कि अट्रैक्टिव रेट ऑफ सब्सिडी की जो हमने बात की थी, तो कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे अप्लाई करना है, मुझे कोई बिजनेस करना है, लेकिन क्योंकि सब्सिडी जो है मेरी पत्नी के नाम से या हमारे फैमिली के किसी फीमेल मेंबर के नाम से यदि एप्लीकेशन की जाए तो सब्सिडी ज्यादा मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि ट्रेनिंग उन्हें करनी पड़ेगी ईडीपी ट्रेनिंग, उसके बाद ही, क्योंकि वो अगर नहीं होता है वैसा तो नहीं होगा, तो इसलिए वो एडवाइजेबल है कि हम जो एप्लीकेंट है ओरिजिनल वो ही इसके लिए एप्लीकेशन करे। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑफलाइन बिल्कुल नहीं है इसका सिस्टम। इसमें इसका पोर्टल है www.kviconline.gov
gov.in। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस पर ही जाकर आपको एप्लीकेशन करनी है। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। अभी इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी इसी एप्लीकेशन के अंदर जो है वो इंक्लूड कर ली गई है, यानी यू हैव नॉट टू अपलोड ए सर्टिफाइड प्रोजेक्ट रिपोर्ट फ्रॉम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब उसकी जरूरत नहीं है। जो उसके अंदर जो एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी डिटेल मांगी गई है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, यदि आपने वो फिल कर दी है तो इट विल बी ट्रीट दैट यू हैव सबमिटेड दी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑल्सो अलॉन्ग विद दी एप्लीकेशन। तो ये जो है इस तरीके का बहुत सिंपल कर दिया गया है ताकि जो एप्लीकेंट्स हैं उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। हमें एप्लीकेशन ऑनलाइन ही करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है और मेरे पास बहुत फोन भी आते हैं कि सर हम बैंक में गए थे, बैंक वाले जवाब नहीं देते हैं। लेकिन क्या है कि अभी सब डिजिटलाइज्ड हो रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के सिस्टम हो रहे हैं। मैं आगे भी समझाऊंगा किस तरीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ आपको एप्लीकेशन, हाँ, जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि यहाँ से मेरा काम हो जाएगा, उस बैंक का प्रेफरेंस आपको जो है एप्लीकेशन में डालना है कि किस बैंक के थ्रू या उसकी कौन सी ब्रांच के थ्रू आप लोन लेना चाहते हैं। तो वो जो है ये एक सिस्टम है इसके अंदर। इस योजना में जो एक खास बात है वो ये है कि अट्रैक्टिव सब्सिडीज हैं, लोन प्रोसीजर इजी है, आराम से लोन मिल सकता है। थोड़ी सी दिक्कतें वहां जरूर आती है कि आप सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं, कोलेटरल नहीं है आपके पास अवेलेबल, या फिर जो है आपका सिविल स्कोर या आपकी रेटिंग बरोबर नहीं आ रही है, तो कुछ तकलीफें हो सकती हैं। लेकिन उसके भी रास्ते होते हैं, हम उसको सेटल कर सकते हैं बैंक से बातचीत करके। उसका एक सिस्टम है। जो हमारे पास इस तरीके के फोन आते हैं तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि क्या करना है। साथियों, ये योजना में सिर्फ जो एक माइनस पॉइंट है वो ये है कि ये सिर्फ नई यूनिट्स के लिए या नए बिजनेस के लिए है। यदि एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपांड करना है तो उसके लिए ये योजना नहीं है। साथियों देखिए, कुछ लोग हैंड रेस कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जब ये एंड में हम जितने भी आपके प्रश्न यदि कोई हैं तो उनका हम डेफिनेटली उनको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बट इन द मीन टाइम आप जो है चैट बॉक्स में भी आपके प्रश्न डाल सकते हैं, ये आपसे प्रार्थना है। साथियों, ये दूसरी स्कीम है मुद्रा लोन। ये बहुत पॉपुलर स्कीम है देश के अंदर और ये माइक्रो फाइनेंस की योजना है। ये भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत चलती है। इसमें प्रिंसिपल अप्रूवल इसके लिए यदि एप्लीकेशन करते हैं मुद्रा लोन में तो 59 मिनट्स में अप्रूवल या रजिस्ट्रेशन होता है आपकी एप्लीकेशन का, और आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इस तरह की व्यवस्था इस योजना में है। साथियों, यदि इसकी पूरी डिटेल योजना क्या है, मुद्रा योजना माइक्रो फाइनेंस की, तो psbloan59minutes.com पर जाकर ये योजना का विवरण पढ़ा जा सकता है। माइक्रो लोन्स की योजना है जिसमें सिर्फ 10 लाख रुपए तक लोन मिलता है। और इसमें सिर्फ बिजनेस के लिए ही नहीं, अपितु आपको घर के लिए या मतलब होम के लिए लोन चाहिए तो वो मिलेगा, पर्सनल कोई कारण से लोन चाहिए तो वो मिलेगा, व्हीकल खरीदना है कॉमर्शियल या पर्सनल यूज के लिए तो भी इस योजना के तहत आपको लोन मिल सकता है। बट अल्टीमेटली इट्स ए स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस और 10 लाख रुपए से ऊपर तक, 10 लाख रुपए के अंदर तक का लोन जो है इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें एलिजिबिलिटी किन किन को है? स्मॉल बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, सर्विस एंड ट्रेडिंग सेक्टर्स के लोगों को। इनमें कौन कौन कवर हो रहे हैं आइए देखते हैं। कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 65 साल से नीचे है वो एप्लीकेशन कर सकता है। प्रोप्राइटरी, पार्टनरशिप फॉर्म्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, एंटिटीज, शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स, आर्टिसन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड प्रोफेशनल्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, ये सभी, यानी कहने का अर्थ ये है कि इस योजना में एक छोटा से छोटा व्यापारी, चाहे चाय का गल्ला चलाता हो या सब्जी बेचता हो ठेले के ऊपर, उससे लेकर ऊपर तक भी जो है लोग, यदि आपकी रिक्वायरमेंट 10 लाख के अंदर है तो इस योजना के अंदर अप्लाई किया जा सकता है। इसमें 3 प्रोडक्ट हैं इस योजना में, शिशु, किशोर एंड तरुण। शिशु के अंदर सिर्फ 50,000 रुपए तक के लोन दिए जाते हैं, यानी बहुत छोटे व्यापारी, जो जैसा मैंने अभी कहा था चाय की लारी वाला या वेजिटेबल वेंडर, इस तरीके के जो छोटे छोटे व्यापार हैं जो 50,000 रुपए के अंदर कहीं जो है चलाए जा सकते हैं, संचालित किए जा सकते हैं, उनके लिए ये योजना है शिशु। और किशोर के अंदर 50,000 से 5 लाख रुपए तक के लोन, और तरुण के अंदर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की यदि आपकी एप्लीकेशन है
तो वो तरुण के अंदर स्वीकृत होगी। साथियों 50 ये जो शिशु है प्रोडक्ट, इसमें पिछले लगभग 6-8 महीने से सरकार की योजना के तहत 2% इंटरेस्ट सबवेंशन यानी 2% इंटरेस्ट की माफी का जो है प्रावधान है। यानी दूसरे शब्दों में कहूं तो केंद्र सरकार 2% इंटरेस्ट आपके खाते में बैंक को जमा कराएगी। इस तरह की ये योजना, लेकिन ये सिर्फ जो है शिशु प्रोडक्ट के लिए है, किशोर और तरुण के लिए नहीं है। ये आप जो है जस्ट आई विश टू ब्रिंग टू योर नोटिस। इसमें भी पूरे देश के अंदर ये योजना, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, कोलेटरल जो है नहीं मांगा जाएगा, ऐसा जो है योजना का नियम है। लेकिन जैसा मैंने अभी पहले कहा था कि बैंक इंसिस्ट तो करती ही है, वो बिना उसके देती नहीं है। नो प्रोसेसिंग चार्जेस फॉर बोथ न्यू एंड एग्जिस्टिंग बिजनेस। इस योजना के अंदर यदि आपका बिजनेस है और आप एक्सपांड करना चाहते हैं तो आप इसके लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। महिलाओं को कुछ इंटरेस्ट में, ब्याज में भी कुछ राहत होती है। और इसके अंदर ऑलमोस्ट सभी बैंक जो हैं वो इस योजना के तहत पार्टनर हैं और वो लोन देने का काम करते हैं। एनबीएफसीज और एमएफआईज भी इस योजना के तहत लैंडिंग कर रहे हैं। इसमें भी ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है। udyamimitr.in ये इसका पोर्टल है, इस पर जाकर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। और दूसरा पोर्टल है psbloansin59minutes.com। ये इस पोर्टल के बारे में अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं, लेकिन ये इस पोर्टल के माध्यम से भी मुद्रा लोन अप्लाई किया जा सकता है। मींस यू हैव 2 ऑप्शंस। आप उद्यमी मित्र पर भी जाके कर सकते हैं और psbloan59minutes.com पर भी कर सकते हैं। बट इट इज एडवाइजेबल कि आप psbloansin59minutes.com पर जाकर एप्लीकेशन करें, क्योंकि उसमें गारंटेड है कि आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेस 1 घंटे के अंदर शुरू हो जाएगा। तो ये 2 योजनाओं की हमने चर्चा की। अब जो तीसरी योजना है, वो जिन्होंने पहले PMEGP यानी प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम या फिर मुद्रा लोन के तहत पहले एप्लीकेशन की थी, लोन अवेल किया था, अब वो एक्सपांशन में जाना चाहते हैं, तो ये इस योजना के तहत, जिसका नाम है सेकंड लोन फॉर अपग्रेडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग PMEGP एंड मुद्रा यूनिट्स, इसके तहत जो है वो एप्लीकेशन की जा सकती है। साथियों इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है इस योजना का, वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं वो अपग्रेडेशन में, टेक्निकल अपग्रेडेशन में जाना चाहती हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑटोमेशन के अंदर या एक्सपांशन के अंदर, और जो वेल परफॉर्मिंग यूनिट्स हैं तो उन्हें जो है लोन इस योजना के तहत लोन मिलेगा। हालांकि PMEG पे जो है, जो हमने ओरिजिनल स्कीम देखी उसमें सिर्फ नई यूनिट्स के लिए था, एक्सपांशन के लिए नहीं था। लेकिन इस योजना में एक्सपांशन के लिए जो है पैसा देने का प्रावधान है। इसमें भी सब्सिडीज मिल रही हैं, वो 15% जनरल कैटेगरी के लिए, और यदि नॉर्थ ईस्ट रीजन और हिली स्टेट्स के लोग हैं तो 20% तक सब्सिडी दी जाती है। इसके अंदर यदि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है तो फाइनेंशियल असिस्टेंस या जो लोन की मैक्सिमम लिमिट है देने की, वो 1 करोड़ रुपए तक की है। और यदि सर्विस यूनिट है तो उनके लिए 25 लाख रुपया है। यानी आपके एग्जिस्टिंग सेटअप को यदि आपको एक्सपांड करना है, एक्सपांशन में जाना है या टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना है, तो उसके लिए 1 करोड़ रुपए तक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को और 25 लाख रुपया सर्विस यूनिट्स के लिए ये राशि रखी गई है। ये दिस इज द लिमिट। इसमें एलिजिबिलिटी किन किन को, आइए देखिए। अभी जैसा मैंने कहा था कि जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं जिन्होंने पहले लोन लिया था प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में या मुद्रा के अंदर, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत जिन्होंने लोन लिया हो और कोई स्कीम में, तो वो भी इसके अंदर शामिल हो सकेंगे। मार्जिन मनी क्लेम और अर्लियर लोन एडजस्टेड, ये जो है शर्त है या मतलब कंडीशन है कि आपने जो पिछला लोन लिया था प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में या मुद्रा के तहत, वो लोन आपने रीपे कर दिया है, एंड दैट टू विद इन स्टिपुलेटेड टाइम किया है। मतलब आप कहीं भी डिफॉल्टर नहीं हुए हैं, एनपीए नहीं हुए हैं, तो ही आप जो है एलिजिबल होंगे ये लोन लेने के लिए। और पिछले 3 वर्षों से आपकी जो बैलेंस शीट है वो प्रॉफिट की है, एंड यू आर ए वेल परफॉर्मिंग यूनिट। ये जो है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। इसमें एप्लीकेशन करने के अलग अलग हैं। आप सेकंड लोन फॉर एग्जिस्टिंग PMEG मुद्रा यूनिट्स करके अगर खोलते हैं तो भी एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। psbloansin59minutes.com पर जाकर भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, और kvIC.online पर जाकर भी इस योजना के लिए
इस योजना के तहत लोन एप्लीकेशन कर सकते हैं। बट अगेन वी आई मे सजेस्ट के PSB loans in 59minutes.com पर जाकर एप्लीकेशन करना इज मोर एडवाइजेबल। साथियों, ये कुछ माइक्रो यूनिट्स से रिलेटेड हमने अभी कुछ योजनाएं देखी, और अब जो है माइक्रो के साथ स्मॉल यूनिट्स भी शामिल हो सकती है इस योजना के तहत। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट्स, दिस स्कीम इज नोन एज CGTMSE, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ये इसका पूरा नाम है। साथियों, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि हमारे देश के जितने भी युवा साथी हैं जिनके पास बैंकेबल आइडियाज हैं और वो उसको स्केल अप कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कोलेटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की व्यवस्था नहीं है या थर्ड पार्टी गारंटी दिलवाने की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे लोगों को जो टैलेंटेड हैं और जो कुछ इस देश को कुछ ऐड कर सकते हैं, अपनी सेवाएं दे सकते हैं, तो उनके लिए ये योजना है CGTMSE। और इसमें ये इंश्योर किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से या MSME मिनिस्ट्री की माध्यम से कि ये ऐसे साथी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस अपने खोल सकें। साथियों, ये इसके अंदर 2 करोड़ रुपए तक लोन देने का प्रावधान है। इसमें गारंटी जो है सरकार की होती है और 75% गारंटी कवर होता है, यानी 25% जो है मार्जिन मनी आपको अपनी लगानी है, आपकी तरफ से लगेगी। 75% तक जो है गारंटी सरकार की तरफ से दी जाएगी। अगर ट्रेडर्स को भी लोन चाहिए, क्योंकि अब ट्रेडर्स भी, हम आगे चर्चा करेंगे कि ट्रेडर्स भी अब MSME में जो है इंक्लूड कर लिए गए हैं, और ट्रेडर्स के लिए भी 10 लाख रुपए से लेकर 10 लाख से नीचे का नहीं, इस योजना के तहत 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन यदि ट्रेडर्स को चाहिए तो वो मिलता है, लेकिन उसमें गारंटी कवर 50% ही होगा। तो ऊपर जो है ये 75% था जैसा हमने यहाँ अभी देखा था, लेकिन अब यहाँ ट्रेडर्स के लिए ये गारंटी कवर यानी 50%, यानी उनकी जो होगी उनको रेस्ट ऑफ द अमाउंट के लिए गारंटी की व्यवस्था करनी होगी या कोलेटरल की व्यवस्था करनी होगी। कंसेशनल इंटरेस्ट रेट, इंसेंटिव्स एंड सब्सिडी जैसा MSME की योजनाओं में या MSME यूनिट्स के लिए जो अलग अलग योजना है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, वो सब अवेल कर सकेंगे ये लोन लेने पर भी। साथियों, एक दूसरी योजना है स्टैंड अप इंडिया स्कीम 2021। ये योजना वैसे तो 2017 से चल रही है, लेकिन ये लेटेस्ट इसमें जो योजना है इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमन एंटरप्रेन्योर्स, इसके लिए एक नियम ये है कि हमारे देश की सभी बैंकें, ऑल दी बैंक्स, और उनकी जो ब्रांचेस हर शहर के अंदर है, चाहे जितनी भी ब्रांच हो। एक एग्जांपल से समझे कि बैंक ऑफ बड़ौदा की जो है अहमदाबाद में कम से कम 150 शाखाएं हैं, तो वो एवरी ब्रांच ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा इन अहमदाबाद हैज टू सैंक्शन 1 लोन पर एनम या एवरी ईयर टू SC ST और वुमन एंटरप्राइज। कम से कम एक लोन तो उन्हें देना ही है इस योजना के तहत, जिसका नाम स्टैंड अप इंडिया स्कीम है। ये कुछ नीचे आप देखेंगे कि अभी तक कितनी जो है दी है। सैंक्शनड एप्लीकेशंस जो अभी तक 2017 से लेकर 1,30,542 1,30,000 एप्लीकेशंस इस योजना के तहत अभी पिछले 4-5 सालों के अंदर इसमें सैंक्शन हुई है। इस तरीके से ये योजना बहुत है, और इसमें खास करके जो महिलाएं हैं हमारी उद्यमी, वो काफी बेनिफिट उन्होंने लिया है। और आज तक 2017 से आज तक लगभग 80-81% जितना भी लोन सैंक्शन हुआ है वो महिलाओं ने करवाया है इस लोन। सो ये महिलाओं के लिए ये बहुत ही एक्सक्लूसिव योजना है जिसको समझना चाहिए, और इसमें एप्लीकेशन हो सकती है, और इसके अंदर 1 करोड़ रुपए तक, 10 लाख से नीचे नहीं, 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में आपको लोन इसमें मिल सकता है। आइए इसकी डिटेल समझते हैं। ये इसके अंदर सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया है 2021 में ये, और टारगेट ये है कि 2.5 लाख एंटिटीज को, 2.5 lakhs एंटिटीज विल बी प्रोवाइडेड लोन विद इन ए स्पान ऑफ 36 months, और इसमें 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन देने का प्रावधान है। इसमें रीपेमेंट 7 साल में होगा, जिसमें मोरेटोरियम पीरियड 18 मंथ्स है, यानी 1.5 साल के बाद EMIs पे करना शुरू करना होगा। इनकम टैक्स के अंदर पहले 3 सालों के अंदर
100% रिलैक्सेशन है, प्रोवाइडेड द लोन इज ऑब्टेन्ड अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम। 80% रिबेट ऑन पेटेंट एप्लीकेशन फी। अभी देखिए पेटेंट एप्लीकेशन फी में एमएसएमईज के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, उन्हें फी रिएम्बर्स की जाती है, लेकिन अलग अलग केस में वो 50-60% से अधिक जो है वो रिएम्बर्समेंट नहीं है। लेकिन यहाँ अगर स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत कोई एंटिटी है तो उसे पेटेंट कराने पर 80% रिबेट है फी की। जो फी वाट एवर फी इज पेड फॉर ऑब्टेनिंग पेटेंट, तो वो 80% तक रिबेट मिलती है। ये इसके लिए सिडबी ही जो है वो बढ़िया बैंक है, उसी से उनके माध्यम से ही हमें ये ट्राई करना चाहिए। और ये standupmitra.in पर जाकर एप्लीकेशन की जा सकती है। अभी जैसा मैंने कहा था कि 2017 से लेकर अब तक लगभग 81% जो बेनिफिशियरीज हैं वो महिला उद्यमी ही हैं इस योजना के तहत। साथियों, sidbi.in पर जाकर आप इस योजना को पूरा अध्ययन कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। साथियों, अब हम चर्चा करेंगे कि PSB लोन इन 59minutes.com ये योजना नहीं है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से ईज ऑफ बोरोइंग यानी आपकी बोरोइंग की एप्लीकेशन या लोन की एप्लीकेशन बहुत आसानी से की जा सकती है, जिसमें 1 घंटे के अंदर उस एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग या उसका रजिस्ट्रेशन ये जो है गवर्नमेंट इंश्योर करती है। ये कॉम्प्रिहेंसिव और यूनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर ईज ऑफ बोरोइंग्स के लिए, और जिसके अंदर विद इन 59 मिनट्स जो है वो रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल होता है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, हमारी जितनी भी फाइनेंशियल नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमें कोई नए बिजनेस में जाना है तो ही हम इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। आपको एक्सपांशन में जाना है, एडिशनल कुछ फाइनेंस रिक्वायरमेंट है, तो भी आप जो है एप्लीकेशन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें ऐसा क्लेम किया जाता है कि ये इसमें एप्लीकेशन करना बहुत सिंपल है और हैसल फ्री है, आपको किसी तरह की कोई कठिनाई का जो है अनुभव नहीं होगा। फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म खास करके ये एमएसएमईज के लिए उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। सो इट इज एडवाइजेबल कि एमएसएमईज जितनी भी हैं वो इस प्लेटफॉर्म को यूज करें, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि उनकी यदि योजना 10 लाख से नीचे की है तो वो फिर मुद्रा लोन में जाएंगे, या 25 लाख तक है तो वो प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में जाएंगे क्योंकि वहां सब्सिडी भी मिल रही है। लेकिन अगर उससे बड़ी रकम है तो पीएसबी लोन्स के माध्यम से सीजीटी एमएसई में आप जो है एप्लीकेशन इस के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करेंगे तो ज्यादा आपको कन्वीनियंट होगा। यूजर फ्रेंडली पोर्टल है, आपको जो है कॉन्टेक्टलेस जर्नी होगी, कहीं आपको बैंकों के धक्के नहीं खाने हैं। इस तरीके का भी क्लेम ये PSB लोन इन 59minutes.com करता है। प्लेटफॉर्म इज करंटली बीइंग यूज्ड बाय ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सबके साथ जो है वो इनके एग्रीमेंट है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल बैंक्स और एनबीएफसीज के साथ भी इनके अरेंजमेंट है, उनके माध्यम से आपको लोन मिल सकता है। बट इट इज एडवाइजेबल टू मेक एन एप्लीकेशन थ्रू दिस प्लेटफॉर्म ओनली। आइए देखिए इसके फीचर्स देखते हैं। इसमें बिजनेस लोन 5 करोड़ रुपए तक का अप्लाई किया जा सकता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। यदि पर्सनल लोन है तो 20 लाख रुपया, ऑटो लोन 1 करोड़ रुपया, और यदि घर के लिए लोन चाहिए तो 10 करोड़ रुपए तक की राशि का एप्लीकेशन इस प्लेटफॉर्म से आप जो है वो उसको प्रोसेस कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म सर्व्स फॉर बिजनेस ग्रोथ, मेनली बिजनेस ग्रोथ में जो है आप देखिए कि एक्सपांशन हो, डाइवर्सिफिकेशन, वर्किंग कैपिटल की आपको आवश्यकता हो, या आपको अपना बिजनेस या बिजनेस ऑपरेशंस को स्केल अप करना हो, तो उस पर्पस के लिए ये जो है इस प्लेटफॉर्म को यूज किया जा सकता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रॉ मटेरियल एटसेट्रा, उसके लिए भी यदि एप्लीकेशन करनी है बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को या बिजनेस यूनिट्स को, तो PSB लोन इन 59minutes.com के माध्यम से किया जा सकता है। इसमें देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो है प्रोसेस कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। हाउ इट हैपन्स इन 59 मिनट्स, ये जो क्लेम कर रही है सरकार कि हम 59 मिनट्स में आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे, आपकी एप्लीकेशन को एक्नॉलेज कर देंगे, तो वो कैसे होगा? तो इसके अंदर जो है आप जाएंगे, आपको
गो टू अप्लाई, साइन अप एंड सबमिट दी OTP। ये आज नॉर्मल सिस्टम है, हम सब समझते हैं। इसमें पर्सनल होम लोन और ऑटो लोन के लिए आपको अपनी IT रिटर्न जो है XML फॉर्मेट में, एक्सेल फॉर्मेट के अंदर जो है सबमिट करनी है, और बैंक स्टेटमेंट PDF फॉर्मेट में 6 महीने के आपको सबमिट करने हैं। और बिजनेस लोन यदि है तो GST आइडेंटिफिकेशन एंड बेसिक डिटेल्स ऑफ दी डायरेक्टर्स, ऑनर्स या पार्टनर्स की जो है वो डिटेल आपको कंप्लीट देनी होगी। कोई भी इनकम्प्लीट जो है वो कॉलम आप खाली नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी एप्लीकेशन विद इन 59 मिनट्स प्रोसेस होगी, ऐसा क्लेम किया जाता है। साथियों, अब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक की बात करें, ये MSMEs के लिए स्पेशली इस्टेब्लिश्ड बैंक है। इनकी बहुत सारी योजनाएं हैं। इसमें कुछ योजनाओं पर मैं चर्चा करूंगा बहुत शॉर्ट में। देखिए, एक योजना है स्माइल, ये इनकी रेगुलर योजना है, SMILE। इट्स ए स्कीम फॉर सॉफ्ट लोन। इसके अंदर 25 लाख रुपया जो है वो टर्म लोन और 10 लाख रुपए तक का जो है वर्किंग कैपिटल या ओवरड्राफ्ट लिमिट आदि की देने का प्रावधान है। इसमें मोरेटोरियम पीरियड 3 साल का होता है और 10 साल के अंदर पेमेंट करना है। अभी इस योजना के तहत हेल्थ केयर सेक्टर आफ्टर दिस पेंडेमिक एरा, सिडबी ने जो है वो बहुत एक्सपांड किया है इस स्कीम के तहत लोन देने को मेडिकल सेक्टर के लिए, और ये अभी उनके लिए ये फ्लैगशिप स्कीम हो गई है। उन्होंने इसके लिए अलग से एक फाइनेंशियल विंडो खोल दी है फॉर हेल्थ केयर सेक्टर, जिसमें जो मेडिकल से सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी यूनिट्स हैं या बिजनेस है, वो लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं अगर वो एक्सपांशन में जाना चाहते हैं तो। और भी देखिए कुछ योजनाएं, इक्विपमेंट फाइनेंस नॉन एज SEF, ये भी एग्जिस्टिंग यूनिट के लिए है। इसमें परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स के लिए लोन दिया जाता है, जिसमें रीपेमेंट 6 साल के अंदर करना है। पार्टनरशिप विद OEM मींस ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, जो सिडबी की जो है अप्रूव्ड लिस्ट में है, अगर उनसे आप ये लोन ले रहे हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए तक का लोन ये एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए है। तो एक्सपांशन में जा रहे हैं, कोई मशीनरी परचेस कर रहे हैं तो ये उसके लिए लोन है, ये भी 5 वर्ष के अंदर आपको रीपे करना है। वर्किंग कैपिटल कैश क्रेडिट लिमिट्स अलग से सैंक्शन होती है, उसकी योजना है। ट्रेडर्स के लिए जैसा मैंने अभी कहा था 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक ट्रेडर्स को लोन देने का प्रावधान है। ये एक योजना है स्पीड परचेज ऑफ इक्विपमेंट एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट, इसमें भी 2 से 3 करोड़ रुपए तक का लोन मिलता है। टॉप अप लोन की भी एक स्कीम है विच इज नोन एज टुलिप फॉर। देखिए सिडबी जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर नीड ऑफ द मार्केट बहुत सारी नई योजनाएं लेकर आती हैं, उनका इंटरेस्ट रेट कम होता है। ये सब जो है, इन सब योजनाओं को हमें पढ़ने की और समझने की जरूरत है। तो इसमें sidbi.in पर जाकर आप ये सारी योजनाओं का अध्ययन कर सकते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर से अध्ययन करिए, सिडबी में एक बार जाकर मिलिए, ताकि आपको जो है लोन लेना है। क्योंकि दूसरी नॉर्मल बैंक जो है वो कई बार आपको प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं देती है, लेकिन सिडबी जो है वो MSME के लिए है, इसलिए बेटर ये होगा कि सिडबी को हम पहले कांटेक्ट करें। और भी देखिए, ये पेंडेमिक में सिडबी असिस्टेंस टू फैसिलिटेट इमरजेंसी रेस्पॉन्स अगेंस्ट कोरोना वायरस, अभी इस योजना के तहत 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन देने का प्रावधान है। सिर्फ इंटरेस्ट रेट 5% है, रीपेमेंट 5 साल का है, एंड लोन्स विदाउट कोलेटरल डिलीवर्ड विद इन 48 आवर्स। इसी तरीके से एक योजना और है सेफ प्लस, यदि पेंडेमिक के टाइम में आप गवर्नमेंट ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सके बिकॉज ऑफ इमरजेंसी रेस्पॉन्स, तो अब जो है अब ये 2 करोड़ तक का इसमें भी लोन देने का प्रावधान है, और इसके अंदर सिर्फ 5% ही इंटरेस्ट रेट है। देखिए इंटरेस्ट रेट जो है सिडबी की वो बहुत ही रीजनेबल है कंपेयरिंग अदर बैंक्स। और अभी सेफ और सेफ प्लस के अंदर पहले सिर्फ 21 आइटम ऐसे थे जो मेडिकल सेक्टर में सिडबी लोन दिया करती थी, लेकिन कोरोना से फाइट करने के लिए अभी जितने भी सेक्टर्स हैं मेडिकल के, उन सब के अंदर लोन देना शुरू कर दिया है। चाहे आपको इक्विपमेंट्स बनाने हो, चाहे वो वेंटिलेटर्स बनाने हो, या और डिवाइसेस आपको मैन्युफैक्चर करनी हो, सब पूरा खोल दिया है, जिसके तहत जो है आप लाभ ले सकते हैं। ये एक योजना है सिडबी की अराइज। ये अराइज योजना जो है, इसके अंदर देखिए फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट लैंड। अभी देखिए कि इस योजना में लैंड भी आप परचेस कर सकते हैं
फॉर एग्जिस्टिंग एंटिटीज फॉर एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें लोन क्विकली सैंक्शन होगा। इसमें देखिए टर्म लोन के अलावा फॉरेन करेंसी टर्म लोन भी अवेलेबल है। ये 31 मार्च 2022 तक ये योजना है। हालांकि नॉर्मल कोर्स में इसका रिन्यू हो जाती है, इसका मतलब जो है एक्सटेंशन आ जाता है, लेकिन अभी ये योजना 31 मार्च तक के लिए है। इसमें ये आवश्यक है कि जो एग्जिस्टिंग यूनिट है वो कम से कम 2 साल पुरानी है और स्टेबल उनकी वर्किंग परफॉर्मेंस है। प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन 25% होगा, क्योंकि यहाँ ये जो लोन दे रहे हैं 3 करोड़ का, तो इसमें मतलब जो है मार्जिन मनी आपकी या प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन 25% कंपलसरी है। और इंटरेस्ट रेट 5.5% से लेकर 6.5 या 6.25% तक है, जो विच इज क्वाइट रीजनेबल। और रीपेमेंट भी इसमें 7 साल में करना है। एक और योजना है स्थापन जो अभी आई है, लेकिन ये भी 31 मार्च तक के लिए है, ए स्कीम ऑफ थीमेटिक असिस्टेंस फॉर परचेज ऑफ कैपिटल असेट। इसके अंदर देखिए टू असिस्ट एंड सपोर्ट न्यू एंड एग्जिस्टिंग एमएसएमईज फॉर परचेज ऑफ कैपिटल असेट्स। इसके अंदर भी लैंड शामिल है, आपको लैंड परचेज करनी है तो। एलिजिबल एंटरप्राइजेस एमएसएमई सेटिंग अप यूनिट्स इन आइडेंटिफाइड सेक्टर्स अंडर पीएलआई। पीएलआई का मतलब है प्रोडक्शन लिंक कैपिटल लिंक स्कीम। अभी भारत सरकार ने बहुत सारी ऐसे सेक्टर्स को पीएलआई के अंदर कवर किया है और उन्हें बहुत अच्छी अट्रैक्टिव सब्सिडीज दे रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत की जो योजना है उसके तहत पीएलआई की योजना है। अगर इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी सेक्टर में जा रहे हैं तो इस स्थापन के योजना के तहत आप लोन ले सकते हैं। इसमें नॉर्मल कोर्स में जो सनराइज सेक्टर है, हर राज्य ने उन्होंने जो है इंडस्ट्री को कैटेगराइज किया है, सेक्टर्स को कैटेगराइज किया है, और उसमें सनराइज सेक्टर है या प्रायोरिटी सेक्टर है, इस तरह की हर राज्य की अलग अलग स्टाइल है कुछ यूनिट्स को या कुछ सेक्टर्स को स्पेसिफाइड करने की, और उनको प्रमोट करने के लिए सरकार की जो है विभिन्न योजनाएं होती हैं। तो ये स्थापन को यदि आप सनराइज सेक्टर में है या ग्रोथ सेक्टर में है या इंपोर्टेंट सेक्टर में है तो डेफिनेटली स्थापन में आप लाभ ले सकते हैं। ये इसमें न्यू एंटरप्राइजेस के लिए है। एग्जिस्टिंग यूनिट अगर 5 साल पुरानी है तो वो इसमें अप्लाई कर सकती है, और 20 करोड़ रुपए तक का लोन इसमें मिल सकता है प्रोजेक्ट कॉस्ट का 75% तक। इंटरेस्ट रेट इसमें 6% से लेकर 7.25% तक है, और जो रीपेमेंट है वो 7 साल में करना है, और इसमें 2 साल का मोरेटोरियम पीरियड है, यानी 2 साल के बाद लोन लेने के 2 साल के बाद आपको अब शेष रिमेनिंग 5 साल के अंदर आपको ये पेमेंट करना है। इसी तरीके से 1-2 योजनाएं और हैं, श्वास एंड आरोग्य, ये लोन स्कीम बाय सिडबी। इसके अंदर देखिए ये अभी जो पेंडेमिक में कोरोना से फाइट करने के लिए ये योजनाएं लाई गई हैं। सिडबी असिस्टेंस टू हेल्थ केयर सेक्टर इन वार अगेंस्ट सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। इसके अंदर ये माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स के लिए ये खास करके जो ऑक्सीजन प्लांट डालना चाहते हैं या इनसे रिलेटेड ऑक्सीजन सिलेंडर या क्रायोनोजिक टैंकर्स आदि के लिए, या इससे रिलेटेड और भी कोई आइटम्स हैं तो उसके लिए ये योजना है। इसमें देखिए सिर्फ 4.5% से 6% इन ब्याज दर के ऊपर ये फाइनेंस अवेलेबल है। 100% इसके अंदर मार्जिन मनी भी नहीं चाहिए। मतलब अभी कोरोना से रिलेटेड जो फाइट में सिडबी कुछ ऐसी योजनाएं लेके आई है जो श्वास और आरोग्य है, इसके अंदर आपको मार्जिन मनी भी नहीं चाहिए, आपको 100% फाइनेंस होगा, और क्रेडिट गारंटी ऑप्शंस के तहत आपको लोन दिया जाएगा। जो अभी हमने स्कीम्स जो डिस्कस की, सीजीटी, एमएसी और दूसरी, उनके तहत जो है लोन से कंसिडर होगा। टर्म लोन बोथ फॉर प्लांट एंड मशीनरी एज वेल एज वर्किंग कैपिटल, और एप्लीकेशन ऑनलाइन एंड इमीडिएट लोन असिस्टेंस। ये जो है इस तरीके की जो सुविधाएं हैं। इसमें अगर इस तरीके का कोई बिजनेस आप करना चाहते हैं या आपके जहन में है तो www.sidbi.in पर जाइए या उद्यमी मित्र पर जाकर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये खोलकर बोरोवर्स कॉर्नर में जाकर और आपको एप्लीकेशन करनी है। लेकिन एप्लीकेशन जो है आजकल सब मैक्सिमम ऑनलाइन होती है। जो ऑफलाइन करने की कोशिश करते हैं वो जो है गोल गोल घूमते रहते हैं, उनकी बात बनती नहीं है। तो sidbi.in पर जाकर आप सारी जानकारी सिडबी के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। अब साथियों अंत में मैं इतना कहूंगा कि हर राज्य भी, क्योंकि इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करता है अपने यहाँ खुलवाने के लिए,
इंडस्ट्रियल ग्रोथ उनका अच्छा हो तो राज्य की प्रगति होगी। तो हर राज्य में युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं, हालांकि समय के अनुसंधान में मैं उसकी डिटेल्स आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो उसके टाइटल्स हैं वो मैं आपको कुछ राज्यों के बताना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ये स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप इन मध्य प्रदेश, इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। अभी आप अगर गूगल पर सिर्फ इतना डालेंगे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश, तो ये खुल जाएगी। इसकी डिटेल आप पढ़िए। इसके अंदर आपको 25 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, कुछ सब्सिडीज भी हैं, इंटरेस्ट रेट भी कम लगता है, इस तरह की फैसिलिटीज हैं। और इसमें युवाओं के लिए है तो 18 वर्ष से लेकर 40-45 वर्ष तक, अलग अलग राज्य में अलग अलग सीलिंग है एज की, लेकिन 45 वर्ष तक के लोगों को लिए जो है ये योजना खुली रहती है। इसी तरह का दिल्ली में दिल्ली स्वरोजगार योजना है, ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली चलाती है। इसमें 5 लाख रुपए तक लोन जो है युवा साथियों को देने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की है, इसके अंदर भी जो है 25 लाख रुपए तक का लोन देने का प्रावधान है और सब्सिडीज हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ये स्कीम ऑफ यूपी गवर्नमेंट की है, इसमें भी इसी तरीके से 25 लाख रुपए तक लोन देने का है। सीड मनी स्कीम, ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की स्कीम है जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के द्वारा चलाई जाती है और इसमें युवाओं को जो है इनवाइट किया जाता है और जो इस तरीके के युवा हैं उन्हें भी 25 लाख रुपए तक अलोंग विद सब्सिडीज देने का इन योजनाओं के अंदर प्रावधान है। कहने का अर्थ ये है कि जिस राज्य में भी आप रहते हो उस राज्य में कोई ना कोई स्कीम मुख्यमंत्री के नाम से या राज्य सरकार के द्वारा लोन की अलग से जो योजनाएं अभी हमने सारी चर्चा की, उनके अलावा अतिरिक्त भी ये योजना है जिनका लाभ आप ले सकते हैं। साथियों, अभी लोन लेने के लिए आपको कुछ करना, यदि आप सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। जब तक ये रजिस्ट्रेशन आप नहीं करेंगे आपको लोन नहीं मिलेगा। एमएसएमईज उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आप ये आइकॉन देख रहे हैं, बस ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको, बहुत सिंपल है, आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है किसी भी तरीके का, सिर्फ आपको आपका आधार नंबर डालना है नई यूनिट्स को, और पुरानी जो यूनिट्स हैं जिन्होंने अभी तक कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं कराया या पहले उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन कराया था उन्हें भी अब इसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। तो उन्हें जो एग्जिस्टिंग यूनिट हैं जो पहले उद्योग आधार में थी उन्हें आईटीआर और जीएसटीआर की कुछ जो है फिगर्स डालनी होगी, लेकिन जो नई यूनिट्स आने वाली हैं उनको तो सिर्फ आधार नंबर ही डालना है और किसी तरीके का दोनों कैटेगरीज में कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है और आपको इमीडिएट एक नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर असाइन हो जाता है जो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर होगा एंड विद इन 15 डेज ऑफ टाइम आपको सर्टिफिकेट भी आ जाता है। ये सारा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक सब वैलिडेट होकर आपके आधार से सब चेक होकर जो है आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन आपको लोन लेना है, आपको नई यूनिट डालनी है या जो है एक्सपांशन में जाना है, आपने अभी एग्जिस्टिंग यूनिट का यदि रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है उद्यम में तो आपको ये कराना होगा। साथियों, इसके अलावा और ये नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन यानी एनएसआईसी पर भी आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। इसका ये सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम है www. ये देख लीजिए nsicproline.com, इस पर जाकर भी आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ये दोनों उद्यम में और यहाँ दोनों ये फ्री हैं। एनएसआईसी भी आपको जो है मदद करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है उनके। आपको किस तरीके से लोन लेना है उसकी एडवाइस भी आप एनएसआईसी से प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, अभी ट्रेडर्स को यदि आपको आई वुड लाइक टू रिकॉल योर मेमोरी के कुछ महीनों पहले ट्रेडर्स को भी एमएसएमई की परिभाषा में सम्मिलित कर लिया गया है। तो अभी जिस तरीके से अभी उद्यम रजिस्ट्रेशन का मैंने बताया कि वहां जाकर आपको एप्लीकेशन करनी है, उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in पर जाकर आपको ये एप्लीकेशन करनी है। तो ट्रेडर्स को जो है कवर किया है एमएसएमई में, तो उन्हें क्या फायदा है? इट विल हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन स्मॉल रिटेलर्स एंड होलसेलर्स इन टर्म्स ऑफ ऑब्टेनिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। यदि आपको लोन लेना है तो अब आप जो है प्रायोरिटी लेंडिंग सेक्टर में आएंगे। मतलब अगर आप एमएसएमई रजिस्टर्ड बिजनेसमैन है, और कोई भी बिजनेसमैन करवा सकता है, ट्रेडर जो है वो बिजनेस उद्यम में रजिस्ट्रेशन करा सकता है, तो उन्हें जो है प्रायोरिटी लेंडिंग सेक्टर के अंदर बैंक को जो है कंसिडर करना होगा कि इनको लोन देना है हमें। और बेनिफिट ऑफ ऑब्टेनिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रेडर्स इंक्लूड एक्सेस टू चीपर बैंक लोन्स।
अभी अगर जो भी सुविधाएं मिल रही हैं तो कुछ सुविधाएं जो हैं वो ट्रेडर्स को भी नेचुरल है वो मिलेगी। जैसे सिडबी, अगर आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन है और सिडबी में आप अप्रोच करते हैं तो डेफिनेटली उनकी इंटरेस्ट रेट कम है, तो वो एडवांटेज तो आपको मिलने वाला ही है। तो ये वी ऑल्सो एडवाइज every trader of the country to make registration under उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर एमएसएमई स्टेटस। साथियों, मेरा समय भी समाप्त हुआ है और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं और आपने सुना है। आपको किसी भी तरीके का, ये मेरा टेलीफोन नंबर दिया हुआ है और मेरा ये ईमेल आईडी है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जरूरत है तो टेलीफोन भी कर सकते हैं। 11 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में 11 to 7 मैं अवेलेबल रहता हूं। आपकी कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरीके का क्लेरिफिकेशन चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए, तो जो है आप मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। वो मेरा प्लेजर होगा यदि आप मुझे कांटेक्ट करते हैं किसी भी तरह की, यदि मैं आपको सहायता कर सकूं तो ये मेरी खुश नसीबी होगी। अगेन थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच टू टेली, जिन्होंने ये जो है आयोजन किया और मुझे यहाँ इन्वाइट किया। थैंक यू टू ललित जी एंड एवरीवन। थैंक यू। Thank you so much, Niranjan ji, for sharing your valuable inputs on various MSME schemes and loans. And I am sure our audience would have got very insightful information. With this, I would like to introduce our next speaker of the day, Mr. Rakesh Sharma. He is a business manager and has been associated with Tele for more than 3 years. He has got a lot of experience of Tele as a product and the related domain expertise as well. His areas of expertise includes knowledge of GST domain and Tele product. He will be showcasing us the newly released and functionally rich product Tele Prime, which makes business operations across segment simpler. So with this, I would like to invite Rakesh Sharma. Rakesh ji, please. Thank you, Lalit. And good morning, everyone. Welcome in Business Series event. Hope you all are doing good and keeping safe with your loved ones. First of all, I would like to thanks Niranjan ji. निरंजन जी ने बहुत ही इंसाइटफुल एंड इंफॉर्मेटिव डिटेल्स हमारे साथ शेयर की, दैट हाउ वी कैन मैनेज एडिशनल फंड्स एंड वेयर वी अप्रोच फॉर दैट एंड उसका प्रोसेस क्या है एंड ऑल थिंग्स. सो थैंक्स निरंजन जी. एंड आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. सेकंड. So Lalit, please confirm my screen is visible. Yes, it's visible. Thanks. So without any further delay, we'll start the discussion on today's topic, that how technology can help us to manage our finance. And अगर हम finance management की बात करें तो finance management is one of biggest pillar of our business operations, and we can also say that it's backbone of our business. तो इसमें I think ये कहना गलत नहीं होगा कि जो फाइनेंस मैनेजमेंट है वो हमारे बिजनेस का बैकबोन है. एंड इसको हम कैसे राइट प्रैक्टिसेज क्या है, इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसको हम डीप डाइव करते हैं. सो टेक्नोलॉजी कैसे क्या रोल अदा करता है हमारे बिजनेस में बेस्ट प्रैक्टिसेज यूज करने में. एंड मैं ये भी कहना चाहूँगा कि विदाउट टेक्नोलॉजी कुछ ऐसे टास्क हैं जिनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. सो बिजनेस प्रोस्पेक्ट में इसका क्या रोल रहेगा टेक्नोलॉजी का, वो हम समझते हैं. सो फाइनेंस मैनेजमेंट, लिक्विडिटी, फंड मैनेजमेंट, ये सारे सिमिलर वर्ड्स हैं. एंड अभी कोविड एंड ऑल जो सिचुएशंस है आज के समय पे, उसमें हम देख पा रहे हैं कि कुछ हमारे बिजनेस सेक्टर्स हैं वो ग्रोथ कर रहे हैं, कुछ बिजनेस सेक्टर्स हैं जहाँ पे लिक्विडिटी एंड कैश क्रंचेस का प्रॉब्लम्स रहता है. एंड हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं. तो कैसे हम जो हमारे बिजनेस को और बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं, उनको हम डीप डाइव करते हैं. So 3 C's to take control of your business. So 3C थ्योरी क्या है और कैसे हम 3C थ्योरी को
ऑप्ट करते हुए हमारे बिजनेस पे कंट्रोल ले सकते हैं, इसको हम समझते हैं। तो 3C का जो पहला ऑब्जेक्ट है वो है कैश फ्लो मैनेजमेंट। हमारे बिजनेस में कैश फ्लो मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है। हमारा कैश फ्लो मैनेजमेंट अगर इनलाइन है तो हम ग्रोथ की बात कर सकते हैं, नए अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं, बट अगर यही कैश फ्लो मैनेजमेंट कैश क्रंच में बदल जाए तो हमें राइट टाइम पे राइट एक्शन लेने की जरूरत रहेगी। कुछ नए ऐसे एक्शन प्लान बनाने पड़ेंगे कि हम उस पर्टिकुलर कैश क्रंच की सिचुएशन से निपट सकें। कॉस्ट कटिंग, सो कॉस्ट कटिंग में हमें एड्रेस करना रहेगा कि कौन से ऐसे ओवरहेड्स हैं जो मेरे बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस को डाउन कर रहे हैं, मेरे जीपी को रिड्यूस कर रहे हैं, या कैसे हम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं हमारे ओवरहेड्स को, जो अननेसेसरी ओवरहेड्स हैं या फिर जो हिडन ओवरहेड्स हैं उनको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम एक सिनेरियो लेके चलते हैं। टैली में हम बहुत ही इजी वे में बजटिंग कर सकते हैं। जो हमारे टोटल फाइनेंशियल ईयर के जो एक्सपेंसेस हैं उनको हम बजट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम आज के कोविड के दौर में देख रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो डिजिटल मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो लेट्स सपोज मैं फाइनेंशियल ईयर के लिए कितना बजट एलोकेट कर रहा हूँ जो डिजिटल मार्केटिंग पे एक्सपेंड करना चाहता हूँ, कितना मेरा ओवरऑल मार्केटिंग मटेरियल पे कितना बजट जा रहा है, कितना मेरे अदर ओवरहेड्स हैं उनको मैं बजट कर सकता हूँ। और अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं बिजनेस में कैश क्रंचेज की, तो उन बजट को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये सब हम कैश फ्लो मैनेजमेंट, कॉस्ट कटिंग सेकंड सी, एंड थर्ड सी, चूज द राइट टेक्नोलॉजी। तो इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए, बिजनेस ऑपरेशंस में इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए हमें एक राइट टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। और यही हम एज ए टैली हम करते आ रहे हैं पिछले लास्ट 32 ईयर्स से। हम हमारे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को हमारी सर्विसेज सर्व करते हैं, और जो हमारा पावरफुल प्रोडक्ट है उसके साथ हम आपके बिजनेस का डीप डाइव एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। रिसीवेबल एंड पेबल मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं तो रिसीवेबल एंड पेबल्स इसका एक कोर पार्ट है। अगर हमारे रिसीवेबल्स हमारे पेबल से हायर साइड रहेंगे तो हमारे जो बिजनेस के कैश फ्लो है वो इनलाइन रहेगा। अगर रिसीवेबल्स डाउन साइड आते हैं, पेबल्स हमारे जो हैं वो हायर साइड रहते हैं, तो कैश क्रंच का इश्यू हमें सामना करना पड़ेगा। रिसीवेबल्स हमें कहाँ से होते हैं? मोस्टली हमारे जो डेटर्स हैं, जो हमारे बायर्स हैं, वहां से हमें रिसीवेबल्स मिलते हैं। जो हमारा वर्किंग कैपिटल है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कहीं चोक तो नहीं हो रहा। एंड जो हमारे पेबल्स हैं उनको हम, अगर रिसीवेबल्स हमारे टाइम से हमें मिल रहे हैं हमारे डेटर्स की साइड से, एंड हमारा वर्किंग कैपिटल कहीं चोक नहीं है, तो हम हमारे पेबल्स भी टाइम से कर पाएंगे। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि हमारे पेबल्स हायर साइड जा रहे हैं, रिसीवेबल्स लोअर साइड जा रहे हैं, तो हम कैश क्रंच की समस्या से कैश क्रंच में आ जाएंगे, और हमारे जो क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, हमारी क्रेडिबिलिटी है, गुडविल है, एंड हमारे जो वेंडर्स के साथ रिलेशन है वो हैम्पर होंगे। तो ऐसी सिचुएशंस में हम ना ड्राइव करें। इन सब चीज़ों को राइट तरीके से मैनेज करने के लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एज इट विद इन टैली, हम इसको समझते हैं। सो इसके समझने के लिए सबसे पहला एक ऑप्शन है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। तो जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं हमारे वेंडर्स के साथ, सप्लाई बायर्स के साथ, हमारे डेटर्स के साथ, तो हम वहाँ पे क्रेडिट पीरियड डिफाइन कर दें। जब हम क्रेडिट पीरियड डिफाइन कर देंगे तो हम देख सकते हैं कि कौन से हमारे जो डेटर्स है वो कितना डिले पेमेंट कर रहे हैं, कितना एज वाइज आउटस्टैंडिंग है हमारा। 0 to 10 डेज में, 0 to 10 डेज के ब्रैकेट में कितना आउटस्टैंडिंग है, 10 to 20 डेज के ब्रैकेट में कितना आउटस्टैंडिंग है, एंड अबव 30 डेज कितना आउटस्टैंडिंग जा रहा है। तो उस चीज को मैनेज कर सकते हैं। और क्रेडिट पीरियड अगर हम मैनेज करते हैं तो उसी के साथ हमारा जो कैश फ्लो प्रोजेक्शन का रिपोर्ट है वो भी साथ साथ प्रिपेयर होता रहता है। एंड इसमें हमें क्लियर विजिबिलिटी मिलती है कि आने वाले किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास कितने रिसीवेबल्स होंगे। एंड तो ये काफी हेल्पफुल फीचर है। क्रेडिट चेक क्रेडिट डेज ड्यूरिंग एंट्री। सो जब हमने क्रेडिट पीरियड डिफाइन कर दिया है किसी हमारे डेटर्स के लिए, एंड ड्यूरिंग द वाउचर ट्रांजेक्शंस, जब हम कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे हैं टैली में, तो वहां पे अगर उसके बियॉन्ड अगर कोई ट्रांजेक्शन जा रहा है, या फिर वो क्रेडिट पीरियड का जो डेट है वो एक्सीड हो रहा है, तो वहां पे आपको टैली प्रॉम्प्ट करता है
कि आप इस वाउचर को पोस्ट करने से पहले एक बार देख लीजिए कि लास्ट जो पेमेंट है वो हमें अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो हम उसको अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको ओवरराइड भी कर सकते हैं, बट एक हमें अलर्ट मिल जाता है, वहीं से हम अपना रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं कि ऑलरेडी हमारा इतना स्टेक किसी पर्टिकुलर डेटर्स पे लगा हुआ है, तो हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए या फिर अभी होल्ड कर देना चाहिए। करंट जो ट्रांजेक्शन है उनको पहले हमारे जो आउटस्टैंडिंग है उसको क्लियर करना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं और हमारे जो वर्किंग कैपिटल है उसको उसको फ्लो में रख सकते हैं। स्पेसिफाइड क्रेडिट लिमिट, हम हमारे डेटर्स के पास्ट बिहेवियर, जैसा कि हमारे जो रूटीन ट्रांजेक्शन्स हैं उनके बिहाफ पे क्रेडिट लिमिट डिफाइन कर सकते हैं। जो हमारे अच्छे पार्टनर्स है विद इन टाइमलाइन पेमेंट करते हैं, उनके साथ ट्रांजेक्शन किस तरह का है, लास्ट बिहेवियर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्रेडिट लिमिट डिफाइन कर सकते हैं। क्रेडिट लिमिट हमें हेल्प करेगा कि हम अपने वर्किंग कैपिटल का टोटल स्टेक किसी सिंगल पार्टनर पे या कुछ कपल ऑफ पार्टनर्स पे ना लगाएं, बल्कि एन नंबर ऑफ पार्टनर्स के पास साथ हमारा ट्रांजेक्शन बनता रहे, और वहाँ पे अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम या ऐसा कोई इशू अराइज होता है तो हम उससे आसानी से निपट सकें। एंड इन केस अगर हमने किसी हमारे डेटर्स के लिए क्रेडिट लिमिट असाइन किया है और उसके बाद वहाँ पे ऐसा कुछ सिचुएशन अराइज होता है कि हमें उनको कुछ एडिशनल बिलिंग भी करनी है और टैली हमें प्रॉम्प्ट कर रहा है, रोक रहा है कि आप बियॉन्ड क्रेडिट लिमिट आप उन पर्टिकुलर अकाउंट पे बिलिंग नहीं कर सकते हैं, तो एडमिन कंट्रोल के साथ हम उसको ओवरराइड भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना इजी है। लेट सपोज हम ये बिहेवियर हमारे वर्किंग एनवायरनमेंट में यूज नहीं कर रहे और हम ऐसे पार्टनर्स को कुछ क्रेडिट लिमिट इस तरह का कुछ डिफाइन भी नहीं कर रखा, तो हमारा कितना जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ जाता है। और अगर हम इस तरह से इस बिहेवियर को अपनाते हैं हमारे डे टू डे वर्क एनवायरनमेंट में, तो हमारा रिस्क कितना मिनिमाइज हो जाता है। लेट सपोज एक पार्टनर का हमने 50,000 का लिमिट डिफाइन किया एंड नेक्स्ट जब हम ट्रांजैक्शन पोस्ट कर रहे हैं तो 50,000 का जो लिमिट है वो ओवरलैप कर रहा है, तो टैली हमें होल्ड कर देगा कि इस ये बिलिंग हम अभी नहीं कर सकते। तो बट अगर हमें लगता है कि कुछ सर्टेन टाइम पीरियड में कुछ अनकंसाइल्ड ट्रांजेक्शन्स हैं, जो अनकंसाइल्ड कुछ ऐसे पेमेंट वाउचर्स हैं जो कंसाइल होने वाले हैं, विद इन कुछ टाइम लाइन में हमें कुछ पेमेंट मिलने वाला है, तो हम उसको ओवरराइड कर सकते हैं और उस ट्रांजेक्शन को पोस्ट कर सकते हैं। तो यहीं से हमारा रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा एंड हम कैश क्रंच जैसी प्रॉब्लम्स में नहीं आ पाएंगे। सो नेक्स्ट स्क्रीन पे हम देख पा रहे हैं एक हमारे हम पार्टनर का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और यहीं पे हम 7 डेज का जो क्रेडिट पीरियड है वो यहीं पे डिफाइन कर रहे हैं एंड यहीं पे हम पार्टनर के पास्ट बिहेवियर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रेडिट लिमिट भी सेट कर सकते हैं। एंड क्रेडिट लिमिट सेट करने के बाद एक इस स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं एक मैसेज प्रॉम्प्ट हो रहा है कि पर्टिकुलर पार्टनर का जो क्रेडिट पीरियड है वो ड्यू डेट से एक्सीड हो गया है, तो इस वजह से ये एक वार्निंग मैसेज हमें मिल रहा है। हम इस वार्निंग मैसेज को ओवरराइड भी कर सकते हैं एज पर हम आवर रिलेशन विद पार्टनर्स, और हम इसको होल्ड भी कर सकते हैं। हम बात कर सकते हैं कि आप पहले हमारी पुरानी आउटस्टैंडिंग्स को क्लियर किए, देन हम ये ट्रांजेक्शन्स आपके साथ करेंगे इस तरह से। तो यहीं से हम अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। एंड सेकंड स्क्रीन पे हम देख पा रहे हैं क्रेडिट लिमिट से रिलेटेड एक एरर आ रहा है कि पर्टिकुलर पार्टनर के यहाँ पे जो क्रेडिट लिमिट हमने डिफाइन किया है, जो नेक्स्ट हम ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं वो क्रेडिट लिमिट को एक्सीड कर रहा है। तो इसकी वजह से हम इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट नहीं कर पाएंगे और राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेके हम इस तरह से इस बिहेवियर के साथ अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, बेटर तरीके से अपने रिस्क फैक्टर को मैनेज कर सकते हैं। लिवरेजिंग बिल वाइज, सो इनेबल बिल वाइज फॉर नॉन ट्रेडिंग। जो हमारे ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन हैं जैसे सेल से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, उनको तो हम बिल वाइज मैनेज करते ही हैं। जो हमारे नॉन ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन हैं उनको भी हम बिल वाइज मैनेज अगर करेंगे तो हमें कैश फ्लो का एक
क्लियर पिक्चर, क्लियर स्नैपशॉट देखने को मिलेगा। जैसे नॉन ट्रेडिंग जो ट्रांजैक्शंस है उनसे मेरा मतलब है लोन इंस्टॉलमेंट्स हैं, लाइक फैक्टरिंग ड्यूज हैं, जो हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। हिडन कॉस्ट, सो हिडन कॉस्ट हमें डेफिनेटली एड्रेस करना चाहिए। एंड हिडन कॉस्ट से मेरा मतलब यहाँ पे ये है, जैसे लेट्स सपोज एक एग्जांपल के साथ हम इसको समझते हैं। आपने किसी डेटर्स के यहाँ पे कुछ बिलिंग्स किया है और वहाँ पे आपका वर्किंग कैपिटल होल्ड हो गया कुछ टाइम बिंग के लिए, किसी वजह से पार्टनर आपको रीपेमेंट टाइम से नहीं कर पा रहा है, एंड इस केस में हमें कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है हमारे बैंक्स को, लोन एंड एडवांसेज, ऐसा कुछ सिनेरियो है जिसके अगेंस्ट में। तो हम एक तरफ हमारा वर्किंग कैपिटल होल्ड है एंड एक तरफ हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। बट इसको अगर हम क्लियरली अंडरस्टैंड करें तो ऐसा कुछ एडिशनल कॉस्ट नहीं निकल के आ रहा, बट एक तरफ हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और मेरा वर्किंग कैपिटल जो है वो होल्ड पे है, वो रोटेट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से मेरे ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, मैं अपने कमिटेड सप्लाई को होल्ड कर पा रहा हूँ या फिर नई प्रिक्योरमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर एक तरह से देखें तो ये काफी एडिशनल कॉस्ट है हमारे बिजनेस के लिए, तो हम इसको कैसे एड्रेस करें और कैसे इसको मिनिमाइज करें, इसके लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन को इनेबल कर सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं कि जो पार्टनर्स या जो डेटर्स हमें राइट टाइम पे पेमेंट्स नहीं कर रहे हैं उनके लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन के फीचर को इनेबल करें, और वहाँ पे अब यहाँ पे एक एडिशनल कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी हमारे डेटर्स को अगर वो डिले पेमेंट कर रहे हैं। तो उस केस में हो सकता है कि मेरी पेमेंट जो है वो टाइम पे आना शुरू हो जाए और मेरा जो रिसीवेबल पेबल्स है वो मैनेज रहे, मेरा जो फाइनेंशियल जो लिक्विडिटी है मेरे बिजनेस में उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स अराइज ना हो। सो नेक्स्ट स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कुछ पर्टिकुलर अकाउंट्स हैं जहाँ पे उनका आउटस्टैंडिंग के साथ इंटरेस्ट रिसीवेबल भी दिखाई दे रहा है। तो सिंपल एक इंटरेस्ट रिसीवेबल रिपोर्ट के साथ हम ये देख सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर पार्टनर से टोटल आउटस्टैंडिंग के साथ कितना इंटरेस्ट पार्ट है। अब इंटरेस्ट पार्ट बिजनेस बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है कि हमें वो कलेक्ट करना है या फिर वेव ऑफ करना है, वो पार्टनर के साथ हमारे कैसे रिलेशंस हैं के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस फीचर के साथ हम एक एड ऑन एक एक मैसेज आता है कि अगर मैं टाइम से पेमेंट नहीं करूंगा तो हो सकता है मुझे इंटरेस्ट भी पे करना पड़े। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हमारे जो बायर्स हैं वो हो सकता है हमें टाइम से पेमेंट करें या फिर ऐसे सिचुएशंस में ना ही आना पड़े। तो बेस्ट प्रैक्टिस है, इसको हमें अप्लाई करना चाहिए। कैश प्रोजेक्शन, सो कैश को हम कैसे बेटर प्रोजेक्ट कर सकते हैं विद विद दीज फीचर्स जो हमने अभी डिस्कस किए, अगर हम इनको मेंटेन करते हैं तो कैसे हम रेडी टू यूज कैश प्रोजेक्शन की रिपोर्ट को देख सकते हैं और अपने कैश क्रंचेज या कैश सरप्लस है तो उसको कैसे अपॉर्चुनिटीज में अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं, वो एक बार समझते हैं। सो विद प्रॉपर बिल वाइज मैनेजमेंट ऑटो कैश प्रोजेक्शंस विद बी अवेलेबल, अगर हम बिल वाइज हमारे बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन उनको मैनेज करते हैं तो कैश प्रोजेक्शन रिपोर्ट हमें रेडी टू यूज अवेलेबल होता है। एंड क्रिएट प्रोविजनल ट्रांजेक्शन फॉर एक्यूरेट कैश प्रोजेक्शन। एंड जो हमारे फिक्स्ड एक्सपेंस है, लाइक हर बिजनेस में कुछ फिक्स्ड एक्सपेंस होते हैं, जैसे रेंट है, सैलरीज है एंड अदर कुछ ऐसे ओवरहेड्स जो फिक्स्ड होते हैं, अगर हम उनको प्रोविजनल एंट्रीज के साथ मैनेज कर ले तो एक क्लियर पिक्चर आ जाती है आने वाले समय में कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास जो कैश फ्लो है वो किस मोड में रहेगा, कैश सरप्लस में रहेगा या फिर बिलो साइड रहेगा, और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमें कौन कौन से एडिशनल हम कहाँ से फंड्स रेज करेंगे, क्या हमारे सोर्स होंगे, और इस तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं। सो मैनेज योर कैश विद क्लिक ऑफ ए बटन, सो एक सिंगल रिपोर्ट से हम इस हमारी रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं हमारे बिजनेस के कैश फ्लो प्रोजेक्शन को। ओके, सो यहाँ पे विजिबल है कैश फ्लो प्रोजेक्शन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हम देख पा रहे हैं, इस पर थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे। सो जुलाई में हमने इस रिपोर्ट को क्रिएट किया है। पार्ट ए में हमारे करंट बैलेंसेज यहाँ पे नजर आ रहे हैं एंड पार्ट बी में रिसीवेबल्स कितने हैं हमारे, क्यों कौन कितने अमाउंट का रिसीवेबल्स हमारा डेटर से एंड ओवरड्यू रिसीवेबल्स कितने हैं वो हम देख पा रहे हैं। पार्ट सी में हम पेबल्स देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसमें देखिएगा, जुलाई में हम सरप्लस में हैं, अगस्त में हम सरप्लस में हैं एंड सितंबर में हम सरप्लस में हैं, बट अक्टूबर ऑनवर्ड्स हमारे जो रिसीवेबल्स हैं
वो कम हो रहे हैं और हमारे जो पेबल्स हैं वो एज इट इज हैं। तो यहाँ पे हमारा वर्किंग कैपिटल यूज होना स्टार्ट हो गया है अक्टूबर ऑनवर्ड्स। एंड वर्किंग कैपिटल के यूज होने से हम फरवरी में कैश क्रंच में यहाँ पे अराइज हो रहे हैं, कैश क्रंच की सिचुएशन में अराइज हो रहे हैं। तो ये देखिए इस रिपोर्ट के साथ हम ये समझ सकते हैं कि अराउंड 5 और 6 मंथ्स पहले ही मेरे पास एक क्लियर पिक्चर है कि हो सकता है फरवरी में मुझे कैश क्रंच जैसी प्रॉब्लम मेरे बिजनेस में अराइज हो। तो उससे रिलेटेड क्या एक्शन प्लान है मेरे पास, कैसे मैं उसको इजीली उससे हैंड होल्ड कर सकता हूँ, कौन से ऐसे सोर्सेज है जहां से मैं एडिशनल कैश जनरेट कर सकता हूँ और अपने बिजनेस को इस सिचुएशन में अराइज होने से हम सेव कर सकते हैं। और अगर मेरे पास सरप्लस कैश फ्लो है तो आने वाले समय में कुछ ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हर बिजनेस के पास रहती हैं, तो हम उन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं, हमारे बिजनेस एक्सपेंशन में उस सरप्लस अमाउंट को यूज कर सकते हैं, जो कि एंड नेक्स्ट स्लाइड में हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी प्रोविजनल एंट्रीज हैं वो हमने मंथ ऑन मंथ डिफाइन कर दिया है। तो जो सैलरीज रेंट जो हमारे फिक्स्ड एक्सपेंस है उनको हमने एज ए प्रोविजनल एंट्री मार्क कर दिया है। तो कैश फ्लो प्रोजेक्शंस की एक क्लियर पिक्चर मेरे सामने निकल के आ रही है, ताकि अ, हम उसके अकॉर्डिंग हमारे फैक्ट एंड फिगर के आधार पे हम डिसीजन ले सकें। ओके, सो फाइनेंस एंड इन्वेंट्री जो सेकंड पिलर है हमारे बिजनेस का, जो कोर पिलर है इन्वेंट्री। तो आई थिंक कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहता कि हमारे पास ओवरबर्डन इन्वेंट्री हो या फिर इन्वेंट्री मिसमैनेज हो। तो इस तरह की सिचुएशन में आने से पहले हम कैसे हमारी इन्वेंट्री को राइट प्रैक्टिस के साथ मैनेज कर सकते हैं। इन्वेंट्री पार्ट भी उतना ही जरूरी है जितना फाइनेंस मैनेजमेंट है। तो इन्वेंट्री पार्ट को हम कैसे बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, इस पे कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ हाईलाइट करूंगा। फास्ट स्लो नॉन मूविंग आइटम्स, तो हमें एड्रेस करना चाहिए कि कौन से एसक्यूज हैं मेरे बिजनेस के अ, जो इन्वेंट्री है उसमें कौन से ऐसे एसक्यूज हैं जो फास्ट मूविंग है, कौन से ऐसे एसक्यूज हैं जो स्लो मूविंग है, एंड कौन से ऐसे एसक्यूज हैं जो मेरी एजिंग को बढ़ा रहे हैं, नॉन मूविंग एसक्यूज हैं। हमने उनको प्रोक्योर तो कर लिया है, बट उनकी वजह से हमारी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ रही है, हमारे गोडाउन के अननेसेसरी एक्सपेंसेस हमें बियर करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस पे एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है ओवरहेड्स का। हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई है वो हैम्पर हो रहा है। तो इस तरह के अ, हमें एसक्यूज को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको उनको लेके करेक्टिव एक्शन लेके कुछ स्कीम डिस्काउंट इस तरह से कुछ ऐसी स्कीम्स लगा के हमें उनको सेल आउट करना चाहिए। एंड जो फास्ट मूविंग आइटम है वो एवरी टाइम मेरे स्टॉक में अवेलेबल रहे। तो इस तरह से हमें प्लान करना चाहिए। कैटेगराइज कर सकते हैं हम कि कौन सी फास्ट मूविंग आइटम है, कौन सी नॉन मूविंग आइटम है, कौन सा इन्वेंट्री है जो मेरे पास कितने देर से मेरे पास कितने देर से मेरी होल्डिंग में है। 0 to 10 डेज में कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जो 0 to 10 डेज के ब्रैकेट में है, 10 to 20 डेज के ब्रैकेट में कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं, एंड 10 to 30 डेज के ब्रैकेट में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो नॉन मूविंग आइटम्स एज ए बन रहे हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट्स एज ऑफ नाउ उतना नहीं है। तो ऐसे आइटम्स को मुझे मिनिमाइज करना चाहिए और फर्दर प्रोक्योरमेंट से बचना चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन ऑफ ए प्रोडक्ट एंड इनवॉइसेस। सो प्रॉफिट मार्जिन एसक्यू वाइज हम देख सकते हैं कि कौन से ऐसे एसक्यूज हैं जो मुझे मेरे बिजनेस में हाईएस्ट हायर साइड पे प्रॉफिट मार्जिन ड्राइव कर रहे हैं, कौन से ऐसे एसक्यूज हैं जो मेरे बिजनेस की नेसेसिटी तो है बट वहां पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही लेसर साइड है, एंड कौन से ऐसे इन्वॉइसेज हैं जहाँ पे मुझे हायर प्रॉफिट मिला और वो इन्वॉइसेज मैंने किन पार्टीज के साथ उन उन इन्वॉइसेज को लेके मेरा किन पार्टीज के साथ ट्रांजेक्शन हुआ है वो भी मैं एड्रेस कर सकता हूँ। तो एक क्लियर विजिबिलिटी है, डेटा एंड फैक्ट के हिसाब से मैं अपने एक्शन प्लान बना सकता हूँ कि मुझे कौन से एसक्यूज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से एसक्यूज को नॉन फोकस उन पे कम होना चाहिए, एंड कौन से ऐसे अकाउंट है जहाँ पे मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जहाँ पे हम प्रॉफिट मार्जिन तो ज्यादा ड्राइव कर रहे हैं बट वहां से पेमेंट इतना डिले हो रहा है कि मेरा वर्किंग कैपिटल चोक हो रहा है। तो वैसा भी ना हो, उसके लिए हमने डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड एंड क्रेडिट लिमिट के फीचर्स को हमने समझा। तो
इन फीचर्स के साथ हम फैक्ट एंड फिगर के आधार पर डिसीजन ले सकते हैं। नो योर कमिटेड सप्लाई, अगर हमारे बिजनेस में इन्वेंट्री ओवरबर्डन है या फिर कुछ एडिशनल कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़ रही है या फिर नॉन मूविंग आइटम की वजह से मेरा वर्किंग कैपिटल चोक हो रहा है, तो कमिटेड सप्लाई जो मेरी है, जो आने वाले टाइम में मुझे अपने बायर्स को सप्लाई करना है या किसी प्रोजेक्ट पे डिलीवर करना है, तो उसमें कहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम तो अराइज नहीं हो रहा कि मेरा वर्किंग कैपिटल चोक होने की वजह से मैं प्रोक्योरमेंट नहीं कर पा रहा या फिर राइट टाइम पे बाइंग नहीं करने के कारण मैं अपने सप्लायर से नेगोशिएशन नहीं कर पा रहा। तो वो सब हमें अगर हम प्रॉपरली इन्वेंट्री मैनेज करते हैं तो ऐसी सिचुएशंस में हम अराइज नहीं होंगे और आसानी से हम हमारी जो कमिटेड सप्लाई है उनको डिलीवर कर पाएंगे। ऑर्डर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, एंड ये सब चीजें अगर हम बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करेंगे तो हम राइट टाइम पे राइट क्वांटिटी को प्रोक्योर कर पाएंगे और सही तरीके से हमारी इन्वेंट्री को मैनेज कर पाएंगे। रीऑर्डर लेवल सेट कर सकते हैं हम। रीऑर्डर लेवल बहुत ही यूजफुल फीचर है टैली में। जहाँ पे कुछ लिमिटेड आइटम्स होती हैं वहाँ पे एज सच इतना कंसर्न नहीं होता। हम अपने इमेजिनेशन पे भी हम हमारी इमेजिनेशन के आधार पे डिसीजन ले सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर आइटम का कितना हमें प्रोक्योरमेंट करना है, कितना सेल आउट हो रहा है, उसका रीऑर्डर हम अपने लेवल पे सेट कर सकते हैं। बट जहाँ पे एन नंबर ऑफ आइटम्स है वहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी की हेल्प चाहिए। तो विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम इजीली मैनेज कर सकते हैं रीऑर्डर लेवल को। एंड किसी पर्टिकुलर एसकेयू का एक लेवल हम सेट कर देंगे, जैसे ही उस लेवल से हमारा क्वांटिटी नीचे राइज होगा, देन हमें एक रिपोर्ट के साथ हम देख सकते हैं कि हमारा प्रोक्योरमेंट प्लान क्या होना चाहिए, कब हमें प्रोक्योरमेंट करना है। तो इस तरह से हम रीऑर्डर लेवल को भी सेट कर सकते हैं। You have your just in time stock, JIT, just in time, so right time पे right product availability है या मतलब हम इन्वेंट्री मिसमैनेज से जूझ रहे हैं। तो अगर हम ये राइट प्रैक्टिसेस यूज करते हैं तो हम जस्ट इन टाइम स्टॉक, राइट टाइम पे राइट स्टॉक हमारे पास रहेगा और ओवरबर्डन, अननेसेसरी एजिंग स्टॉक, इन सब से हम इजीली बच सकते हैं। हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो चोक नहीं होगा, वो रोटेशन में रहेगा। एंड जो हमारी हिडन कॉस्ट है, जैसे स्टॉक होल्डिंग का या फिर अननेसेसरी कुछ जो चार्जेस हमें एजिंग स्टॉक की वजह से बियर करने पड़ रहे हैं, वो हमारे बिजनेस को बियर नहीं करने पड़े। सो स्टॉक समरी रिपोर्ट है, इसका डिटेल व्यू और एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन से हमने इसमें प्रॉफिट परसेंटेज हम देख पा रहे हैं, जीपी रेट देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपने अपने प्रोडक्ट सेगमेंट को कैटेगराइज किया हुआ है तो कौन सी कैटेगरी से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट ड्राइव हो रहा है, कौन सी कैटेगरी है जहाँ पे आपको मिनिमम प्रॉफिट ड्राइव हो रहा है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें किस पर्टिकुलर सेगमेंट पे फोकस करना चाहिए और उस सेगमेंट में भी कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको हायर साइड प्रॉफिट आपके बिजनेस को अर्न कर रहे हैं। एंड उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे हम फोकस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम वाउचर रजिस्टर में हम देख सकते हैं कि कौन से इनवॉइस पे हमें कितना प्रॉफिट अराइज हुआ है और वो कौन से हमारे डेटर्स के साथ वो ट्रांजैक्शंस हुए हैं। तो इसके साथ हम फैक्ट एंड फिगर के आधार पे चेक कर सकते हैं कि हमें किन पार्टनर्स को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, कौन से ऐसे पार्टनर्स हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उनके लिए कुछ स्कीम्स रन करनी चाहिए ताकि उनके साथ हमारे मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स हो और हमारे बिजनेस में जो प्रॉफिट मार्जिन का जो रेशियो है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो। रीऑर्डर स्टेटस, सो इस एक स्क्रीन से हम क्लियर एक व्यू ले पा रहे हैं। इसको थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एसकेयूज मेंशन्ड है जिनका क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी मेंशन्ड है। वहाँ पे परचेज ऑर्डर कुछ पेंडिंग है, हमने ऑलरेडी कुछ परचेज ऑर्डर उन एसकेयूज के अगेंस्ट में पोस्ट किए हुए हैं, तो अगर वहाँ से कुछ पेंडेंसी है तो वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सेल ऑर्डर ड्यू, कितने हमारे जो सेल ऑर्डर हैं वो ड्यू में है अभी, जो डिलीवर होने हैं। नेट अवेलेबिलिटी के बाद आपके यहाँ पे रीऑर्डर लेवल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इस रीऑर्डर लेवल को सेट करने के बाद हमारे पास फुल यहाँ पे क्लियर पिक्चर में आ रहा है कि कितना शॉर्टफॉल है हमारे पास। तो ये देखिए एक एसकेयू है डेल लैपटॉप i3। तो यहाँ पे हमने 10 नंबर्स का रीऑर्डर लेवल डिफाइन किया है और अभी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक 4 का है। तो 6 नंबर का क्लियरली शॉर्टफॉल है जहाँ पे मुझे प्रोक्योरमेंट करना है। अगर कुछ लिमिटेड आइटम्स में हम डील करते हैं
तो हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास n नंबर ऑफ आइटम है तो विदाउट टेक्नोलॉजी के हेल्प के हम इस चीज को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे कपल ऑफ आइटम्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम देखें तो 6 ऐसे एसक्यूज हैं जिनका मुझे प्रोक्योरमेंट प्लान करना है, और इस रिपोर्ट के आधार पे, फैक्ट एंड फिगर्स के आधार पे अपना प्रोक्योरमेंट का प्लान कर सकता हूँ। सो नेक्स्ट मैं टच करना चाहूँगा हमारे नए प्रोडक्ट टैली प्राइम को। जैसा कि आप जानते हैं नवंबर 2020 से टैली प्राइम लाइव है, एंड हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, सिंपल प्रोडक्ट को हमने और भी सिंप्लीफाई किया है। टैली प्राइम में बहुत सारे ऐसे पावरफुल फीचर्स हैं जिनको हमने इनकॉर्पोरेट किया है प्रोडक्ट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप अभी भी टैली RP9 यूज कर रहे हैं तो आप टैली प्राइम पे मूव कीजिए, एंड अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आपको अराइज हो रही है, कुछ ऐसे आपके कुछ कंसर्न है, तो आप प्लीज अपने प्रेफर्ड पार्टनर से या फिर टैली टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके कुछ की बेनिफिट्स हैं जिनको हम डीप डाइव करेंगे एंड समझेंगे कि कैसे टैली प्राइम आपकी डे टू डे वर्किंग को और इजियर और बेहतर और फास्टर बना सकता है। सो सबसे पहले हम कनेक्टेड ई-वे बिल सॉल्यूशन, टैली प्राइम 2.0 रिलीज से हम देख पा रहे हैं कि ई-वे बिल सॉल्यूशन हम कनेक्टेड सर्विसेज में यूज कर सकते हैं। एंड ई-वे बिल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, थोड़ा डिटेल में डीप डाइव करें इस टॉपिक पे, तो अगर मैं पुराने कल्चर की, पुराने प्रोसेस की बात करूं, तो सबसे पहले हमें काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सबसे पहले हमें जेसन क्रिएट करना होता है, फिर ई-वे बिल पोर्टल पे अपडेट करना, एंड या फिर डायरेक्ट ई-वे बिल पोर्टल से ई-वे बिल बनाना। तो ये सब अब पुरानी बातें हो गई। नए दौर के नए टैली के साथ हमें काम करना है, एंड हम कनेक्टेड ई-वे बिल हमारे सेल इनवॉइस के साथ ही हम ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। सो कनेक्टेड ई-वे बिल सर्विसेज का प्री रिक्विजिट क्या है, कैसे हम इसको इनेबल करेंगे फीचर को, और तो उसको हम एक वॉइस ओवर वीडियो के माध्यम से समझते हैं। सो ललित, प्लीज एक बार कंफर्म करना कि वॉइस एंड स्क्रीन प्रॉपर्ली विजिबल है। सो एक सेकेंड। सो प्री रिक्विजिट क्या है, यार टैली प्राइम में ई-वे बिल सॉल्यूशन को ऑप्ट करने के लिए क्या क्या हमें स्टार्टिंग में कॉन्फ़िगरेशन करना रहेगा, उसको हम एक वॉइस ओवर वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो मैं वीडियो प्ले करता हूँ। ललित प्लीज एक बार कंफर्म करना कि वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर और नॉट। Welcome Yes. to Tally Help videos. In this video, you will look at the process of registration for e-way bill, choosing Tally as your GSP for e-way bill generation, and creating API user to access e-way bill portal directly from Tally Prime. Tally Prime Release 2.0 offers an integrated e-way bill feature that takes care of e-way bill generation without manual intervention. It is designed as a part of your regular invoicing activity and does not need any additional effort. To use Tally Prime for online e-way bill generation, you have to register for e-way bill and choose Tally India Private Limited as your GSP on the e-way bill portal. If you have already selected Tally India Private Limited as your GSP and created an API user for e-invoicing, there is no need to create one for e-way bill separately. You can use e-invoice API user login to generate e-way bill directly from Tally Prime. To register for e-way bill, open the e-way bill portal. Under registration, click e-way bill registration to open the e-way bill registration form. Enter your GSTIN and CAPTCHA
and click Go to Submit. The company details related to the provided GSTIN number are displayed. To verify the details, click Send OTP. You will receive the OTP on your registered mobile number. Enter the OTP in the form and click Verify OTP. Once the verification is successful, fields to enter, username and password are displayed. Enter the details and click Save. Your eWay Bill registration is completed and eWay Bill portal login credentials are created. You can now log in to the eWay Bill system using the username and password created now. To select Tally as your GSP and create API user on eWay Bill portal. Log in to the eWay Bill portal. Go to Home page. Click Registration and then click for GSP. Register your GST Suvidha provider screen is displayed. Click Send OTP. An OTP will be sent to your registered mobile number. Enter the OTP and click Verify OTP. The registration form is shown. Select the option Add New. In the GSP name field of the register form, select Tally India Private Limited. The username is already assigned by the eWay Bill portal. You can add a 3-character suffix to the username. Enter a 3-character suffix in the username and re-enter username fields. Enter a 15-character password in the password and re-enter password fields. You can use this API username and password in Tally Prime to directly access eWay Bill portal and exchange information. Click Add. Even if you have already selected an GSP and created API user for the GSP, you can create a new API user and select Tally India Private Limited as GSP. Once the user creation is completed, you can use the username and password of the API user in Tally Prime for online access of eWay Bill portal. This will allow Tally Prime to exchange information with the portal in real time to generate and download eWay Bill details. You can do all eWay Bill related activities like generate, cancel, extend period, update Part B details and so on directly from Tally Prime using the API user login credentials. Thank you. To know more about Tally Prime features, visit help.tallysolutions.com. सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड इस वीडियो के माध्यम से हमने समझा कि कैसे हम eWay बिल का कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। हमें NIC पोर्टल पे जाना है, GSP क्रिएट करना है एंड हमारे जो यूजर क्रेडेंशियल्स हैं हम उनको यूज करके विद इन प्रोडक्ट eWay बिल बना सकते हैं, उनको कैंसिल कर सकते हैं। अगर हमें टाइम एक्सीड करना है, मॉडिफाई करना है, पार्ट बी की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, तो ये सारे प्रोसेस हम कर सकते हैं। इवन अगर कुछ सिनेरियो में हम देखें कि बल्क अपलोड अगर हमें करना चाहते हैं, जैसे ड्यूरिंग द डे जितने भी इनवॉइसेस बने, इवनिंग टाइम पे हम एट द टाइम ऑफ डिस्पैच द मटेरियल हम उनका eWay बिल जनरेट करना चाहते हैं, तो उन सभी पर्टिकुलर इनवॉइसेस को सेलेक्ट करके उनका बल्क अपलोड भी कर सकते हैं। बार बार हम क्रेडेंशियल्स यूज ना करें, वन टाइम में ही हमारे सारे eWay बिल्स जनरेट हो जाएं। तो बहुत ही कंप्लायंट, सिंपल एंड फास्टर सॉल्यूशन है जो हमें Tally Prime 2.0 रिलीज से हमें मिलता है। सेकंड, अगर हम eWay बिल सॉल्यूशन ऑप्ट कर रहे हैं और हम उसको यूज कर रहे हैं, तो पैरेलली हम HSN एंड GSTN वैलिडेशन भी कर सकते हैं। HSN GSTN वैलिडेशन से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि जब हम रिटर्न फाइलिंग करते हैं
देन उस केस में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे एरर्स अकर होते हैं जो HSN से रिलेटेड है, हमने रॉन्ग HSN वहाँ पे मेंशन कर दिए हैं या फिर GST नंबर गलत मेंशन कर दिया है इन वजह से। तो हम हमारे एग्जिस्टिंग डेटाबेस को भी वैलिडेट कर सकते हैं, और जब हम नया कोई पार्टी मास्टर क्रिएट कर रहे हैं या फिर नया कोई आइटम मास्टर क्रिएट कर रहे हैं, इन द मीन टाइम हम HSN और GST नंबर को वैलिडेट कर सकते हैं। तो ये फीचर भी हमें टेलीप्राइम 2.0 से अवेलेबल है। थर्ड, लुक एंड फील। लुक एंड फील काफी रिफ्रेशिंग है नए प्रोडक्ट में। आप देख पा रहे हैं नया लोगो, नया लुक एंड फील, नई जनरेशन का नया प्रोडक्ट है। टॉप मेनू। सो टॉप मेनू हमें हेल्प करता है मल्टीटास्किंग में। टॉप मेनू एक्चुअली फिक्स्ड मेनू है, हर स्क्रीन पे ये आपके साथ अवेलेबल रहेगा, एंड इसके मदद से हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। लेट सपोज अगर एक एग्जांपल के साथ समझें, तो आप किसी वाउचर पे वाउचर पोस्ट कर रहे हैं और ड्यूरिंग द वाउचर आपको कोई रिपोर्ट एक्सेस करना है, तो टॉप मेनू की मदद से हम प्रिंट सेक्शन में जाके उस रिपोर्ट को प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर हमें किसी हमारे सप्लायर को कोई डिटेल्स मेल करनी है, तो हम वहीं से मेल फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। हमें अलग अलग कंपनीज पे मूव करना है, तो सेम उसी स्क्रीन से हम कंपनी टू कंपनी मूव कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ टॉप मेनू फीचर। चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ब्राउज एंड ब्राउज फीचर को बहुत ही सिंपलर और इनहेंस किया है टेलीप्राइम में। आप सेम टाइम पे अलग अलग लोकेशन से डेटा ड्राइव कर सकते हैं और उनको एक्सेस कर सकते हैं। और जैसे हम विंडोज में फोल्डर टू फोल्डर मूव करते हैं, सेम उसी प्रोसेस में हम टेली ERP9 में भी वही प्रोसेस के साथ हम अपने डेटा को एक्सेस करते हैं विद ब्राउज फीचर। सिंगल साइन इन बहुत अच्छा फीचर है। ये हमारे अकाउंट्स कम्युनिटी के लिए बहुत ही मजेदार फीचर है। अगर हम सिंगल साइन इन फीचर को यूज करते हैं, तो n नंबर ऑफ जो हमारे क्लाइंट्स का डेटा है उसको हम सिंगल साइन इन, सिंगल क्रेडेंशियल्स के साथ इनेबल कर सकते हैं। बार बार जो क्रेडेंशियल्स इन करने का जो एक हेक्टिक प्रोसेस है उससे बच सकते हैं। शॉर्टकट कीज को प्योरली डिफाइन किया गया है नए तरीके से। नए दौर के नए टोली में हम देख पाएंगे कि जैसे कॉपी पेस्ट की जो कमांड्स हैं उनको और भी स्ट्रीमलाइन किया गया है। आप इजीली कंट्रोल C कंट्रोल V जो रेगुलर बिहेवियर है कॉपी पेस्ट का, आप वो यूज कर सकते हैं। कुछ नई शॉर्टकट कीज भी इंट्रोड्यूस की गई हैं टेलीप्राइम में। चेंज व्यू रिपोर्ट्स को हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनका स्केल फैक्टर चेंज कर सकते हैं, डीप डाइव कर सकते हैं। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, किसी पर्टिकुलर रिपोर्ट से रिलेटेड अगर कुछ एक्सेप्शंस रिपोर्ट वहाँ पे जनरेट होती हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो उनको भी हम उसी रिपोर्ट के साथ एनालाइज कर सकते हैं, डीप डाइव कर सकते हैं। मोर डिटेल्स, कुछ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स के साथ हमें कुछ ऐसे फील्ड को ऐड करना होता है, तो वो हम मोर डिटेल्स फीचर के साथ यूज कर सकते हैं एंड यूटिलाइज कर सकते हैं फीचर को। बेसिस ऑफ वैल्यू एंड ऑप्टिमाइज इनवॉइस प्रिंटिंग, यहाँ पे हम हमारी जो एक कॉस्ट है, जो हमारी स्टेशनरी कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। लेट सपोज कोई हमारा ट्रांजेक्शन्स का प्रिंट आउट है वो 5 to 10 पेजेस में आ रहा है, 5 to 7 पेजेस में आ रहा है। इनवॉइस ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग फीचर की हेल्प से हम उसको 2 या 3 पेजेस में मूव कर सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग फीचर है। एंड सर्च इंजन ऑफ टेलीप्राइम, गो टू फीचर, अमेजिंग फीचर है। आप आई थिंक इसको यूज करते हैं। जो हमारे बिजनेस ओनर्स हैं उनको रिपोर्ट्स एनालाइज करने में जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे उनको शॉर्टकट कीज याद रखनी होती हैं, या फिर एक फियर होता है कि अगर मैं रिपोर्ट्स में कुछ चेंजेस करूंगा तो हो सकता है मेरे डेटा में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स ना आ जाएं, या फिर उन रिपोर्ट्स को कहाँ से एनालाइज करना है, क्या वॉक थ्रू होगा उन रिपोर्ट्स तक पहुंचने के लिए। तो गो टू फीचर आपको हेल्प करता है अपनी रिपोर्ट्स को इजी टू यूज। आप सिर्फ उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स टाइप करेंगे गो टू में, एंड उससे रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट्स हैं वो आपके सामने प्रॉम्प्ट हो जाएंगी, आप उनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एंड गो टू फीचर की मदद से हम इंटरप्शंस को हैंडल कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। लाइक आप वाउचर टू वाउचर ट्रेवल कर सकते हैं, रिपोर्ट टू रिपोर्ट आप मूव कर सकते हैं। आप एक रिपोर्ट पे वर्किंग कर रहे हैं, पैरेलली आपको किसी दूसरी रिपोर्ट से कुछ डेटा एनालाइज करना है, तो आपको गो टू फीचर की मदद से कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग फीचर। एंड वन ऑफ लास्ट, सेव व्यू।
इट्स माय फेवरेट फीचर। मैंने जिनके साथ भी इस फीचर को शेयर किया है उन सब ने इस फीचर को अप्रिशिएट किया है। सेव व्यू फीचर की मदद से हम हमारी जो पर्सनलाइज रिपोर्ट है उनको सेव कर सकते हैं। एंड पर्सनलाइज रिपोर्ट से मेरा मतलब है, जैसे हमने लेट्स सपोज स्टॉक समरी ही देखा ड्यूरिंग द सेशन। अब जब हम स्टॉक समरी रिपोर्ट को ओपन करते हैं तो वो क्लोजिंग बैलेंस के साथ ओपन होता है। तो हम देखना चाहते हैं कि कितना इनवर्ड था, कितना आउटवर्ड था, कितना मेरा जीपी ड्राइव हो रहा है किसी पर्टिकुलर स्टॉक आइटम पे, स्टॉक कैटेगरी पे। उन सबको देखने के लिए हमें F12 कॉन्फ़िगरेशन से कुछ फीचर्स को इनेबल डिसेबल करना रहता है। या फिर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स है कि आपको रेंज फिल्टर यूज करके जिनको हम क्रिएट करते हैं, लाइक पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितने ऐसे मेरे ट्रांजैक्शंस हुए हैं जिनका वैल्यू 1 लाख से अबव है। तो ऐसी रिपोर्ट्स को हमें रेंज फिल्टर यूज करके क्रिएट करना रहता है। तो ऐसी रिपोर्ट्स को हम सेव व्यू फीचर की मदद से सेव कर सकते हैं और उनको एक यूनिक नेम दे सकते हैं, ताकि वो जब भी हम उनको ओपन करना चाहें तो देन हम गो टू फीचर में एंटर करेंगे और यहीं से हम वो अपनी पर्सनलाइज रिपोर्ट को सेव कर सकते हैं। अगर वहाँ पे कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं, अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। अगर हम हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के बाद उनको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। एंड इसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि कितनी रिपोर्ट्स आप पर्सनलाइज रिपोर्ट बना सकते हैं। एन नंबर ऑफ रिपोर्ट्स आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। सो आज के नेक्स्ट इस पे हम बात करते हैं। सो अप्रैल सॉरी 1 मई 2021 ऑनवर्ड्स जीएसटीआर 1 की जो रिटर्न फाइलिंग है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। उसके साथ हमें एचएसएन रेट वाइज समरी भी साथ में ऐड करना रहता है। तो ये जो प्रैक्टिस है वो टैली प्राइम 2.0 में रेडी टू यूज अवेलेबल है। आप आसानी से यहाँ पे अपनी रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। And although we continue to support you for Tally ERP9, however, the development has been stopped for this version of Tally. So Tally Prime का Tally का जो वर्जन है Tally ERP9, वहाँ पे कंटिन्यूस सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, चाहे आप Tally केयर पे कॉल कर रहे हैं, Tally टीम से बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी सपोर्ट्स है वो आपको कंटिन्यू रहेगा। बट जो फर्दर डेवलपमेंट है वो Tally ERP9 पे नहीं रहेगा। Being on Teleprime will ensure that you are fully compliant with all existing rules and regulations. तो एज पर गवर्नमेंट जो भी रूल एंड रेगुलेशन ड्राइव हो रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो सब आपको टेलीप्राइम में देखने को मिलेंगे। फुली कंप्लायंट प्रोडक्ट है। आप अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी हमारे कस्टमर्स अभी टेली ERP9 यूज कर रहे हैं वो टेलीप्राइम पे माइग्रेट करें, अपग्रेड करें अपने को। एंड एनी फर्दर डेवलपमेंट्स विल बी इंटीग्रेटेड इन टेलीप्राइम ओनली। तो जो भी फर्दर डेवलपमेंट रहेंगे प्रोडक्ट में, रिलीज में, जो भी नए फीचर्स हम इनकॉर्पोरेट करेंगे वो सब टेलीप्राइम पे होने वाले हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू टू मूव टेलीप्राइम रिलीज 2.0। टेलीप्राइम 2.0 रिलीज पे मूव करने के लिए हमें क्या करना रहेगा? वैलिड टीएसएस। अगर हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन वैलिड है देन विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट मैं इजीली टेलीप्राइम पे मूव कर सकता हूँ। इनवैलिड टीएसएस के केस में हमारा जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो हमें एक्टिव करना है एंड उसके बाद आप इजीली टेलीप्राइम पे मूव कर सकते हैं। एंड इसके साथ हमें जो कनेक्टेड सर्विसेज हैं लाइक ई इनवॉइस, ई वे बिल, सिंक्रोनाइजेशन एंड जो भी अपकमिंग रिलीज होंगे, जो भी अपडेट्स हैं, जो टेली में नए अपडेट्स, जो अपकमिंग रिलीज है वो सभी आपको अगले 1 साल के लिए विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिलेगा। मैंने कोशिश किया कि फेयरली हम कैसे फाइनेंस मैनेजमेंट कर सकते हैं और कैसे हम हमारी इन्वेंट्री को बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। कुछ की हाइलाइट्स के साथ हमने इसको समझा एंड होप आपके लिए भी ये सेशन बहुत ही यूजफुल रहा होगा। एंड आप प्लीज इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज कीजिए ताकि हमारा कैश फ्लो है वो बेहतर बना रहे, इनलाइन रहे एंड सरप्लस में रहे। कभी भी कोई भी नहीं चाहता कि हमारे बिजनेस में कैश फ्लो एंड इट्स ऑल क्रंचेस में आए। तो आप इन बेहतर फीचर्स की मदद से अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस को और अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ललित, ओवर टू यू। Right. Thank you so much, Rakesh, for sharing your valuable inputs. Before the sum up of this session, there are few questions in the chat box for Niranjan ji as well as for Rakesh you. So I will read those questions and just allow me one more minute.
Single question is the question is from Deepak Kumar ji for Niranjan ji. E-मुद्रा लोन के लिए ITR कंपल्सरी लगता है क्या सर? देखिए, अगर एग्जिस्टिंग यूनिट है तो लगेगा, अगर नई यूनिट है तो नया बिजनेस करना है तो फिर नहीं लगेगा। Okay. हाँ जी, क्योंकि जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस को यदि एक्सपेंशन में जाना है तो ITR की कॉपी तो लगती है, वो यू हैव टू प्रूव दैट यू आर डूइंग वेल, उसके बाद अदरवाइज वो फिर जो है कंसिडरेशन में नहीं आएगा। Okay, thank you. I hope you got your answer, Deepak ji. The next question is from Anil Kumar ji. If CIBIL score and turnover down है तो MSME को कोई secured loan मिल सकते हैं क्या? नहीं, देखिए, अगर सिबिल स्कोर डाउन है तो लोन लेने में बहुत परेशानी होती है, लगभग नहीं मिलता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि कुछ पार्शियल अगर कोलेटरल प्रोवाइड करें तो काम बन सकता है, या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सिक्योरिटी दिलवा सकें, गारंटी दिलवा सकें, तो कुछ ऐसे मतलब सर्टन प्रोविजंस हैं कि अगर उनको अपन समझें और यूटिलाइज करें तो कुछ बात बन सकती है। बट केस टू केस इट वेरीज। अगर कोई ऐसा है कि एग्जैक्टली बहुत डिटेल में तो मैं यहाँ गाइडेंस नहीं दे पाऊंगा इस क्वेश्चन पर, लेकिन ये जिनका भी प्रश्न है अगर वो मुझसे संपर्क करते हैं, मैंने चैट बॉक्स में मेरा नंबर भी डाल दिया है, अगर वो करेंगे तो डिटेल उनसे बातचीत करके और उनको फ्रॉम टाइम टू टाइम गाइडेंस दी जा सकेगी। Right. Thank you so much, Anil Kumar ji. You can contact Niranjan ji. उन्होंने अपना contact details share किया है for more details on the subject. The next question is again from Anil Kumar ji. OBC caste के लिए कुछ special loan है अगर civil score down है तो? नहीं, जो मैंने बताया वो प्रॉब्लम तो है ही। ओबीसी मतलब ऐसा नहीं है कि ओबीसी है तो सिबिल स्कोर डाउन होगा तो अलग से कोई प्रोविजन है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। हाँ जी। And again, MSME in sold electrical vehicles related all business loans क्या उनको मिल सकता है जो सोलर और इलेक्ट्रिकल? देखिए, अभी हर स्टेट ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लेटेस्ट में लाए हैं, उसमें बहुत सारी सब्सिडीज और प्रमोशंस की स्कीम्स हैं, उनको स्टडी करना होगा। एक मैंने रिप्लाई किया है एक चैट में कि आप जो है वो जिस स्टेट से आप रिलेटेड हैं उस स्टेट की इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी को स्टडी कर लीजिए, उसमें आपको सब समझ में आएगा कि आपको किस तरीके का लाभ मिल सकता है। Fair enough. The next question is from Shikha ji. Is there any scheme for handloom for women entrepreneurs? या बिल्कुल है। आप खादी विलेज एंड इंडस्ट्री बोर्ड की स्कीम्स को स्टडी करिए। आप डालेंगे वेरियस स्कीम्स ऑफ, गूगल पर डालिए वेरियस स्कीम्स ऑफ खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज बोर्ड, तो उसके अंदर जो है डिफरेंट आ जाएंगी। उसमें लेडीज के लिए भी अलग से हैं स्कीम, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकती हैं और अपना बिजनेस कर सकती हैं, उनको सब्सिडीज भी मिलेगी और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं उसके अंदर। Okay. Sir, there are a few more questions related to states only, whether these schemes that you've discussed are available in Haryana and Karnataka. The questions from Seema ji and Subhra ji. हाँ जी, बिल्कुल। ये जो जितने भी स्कीम मैंने बताई हैं ये हर स्टेट के लिए एप्लीकेबल है। ये क्वेश्चंस आई थिंक तब आ रहे थे जब आप स्टेट वाइज, जिसमें आपने एमपी, राजस्थान और दिल्ली एनसीटी के रिगार्डिंग जब डिस्कशन हम कर रहे थे। देखिए, जो स्टेट की स्कीम है, जो मैंने मेजरली पोर्शन जो कवर किया है वो सब मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और वो हर स्टेट के अंदर एप्लीकेबल है। लेकिन उसके अलावा जो मुख्यमंत्री के नाम से कुछ योजनाएं चल रही है वो स्टेट की अलग से योजना है, वो दोज आर पर्टिकुलरली अवेलेबल टू द डोमिसाइल्स ऑफ द स्टेट। ओके, ऐसा है। Got it, sir. Next question from Seema ji is only SIDBI gives or other banks also gives like HDFC or ICICI on low interest rates? नहीं, सिडबी की कोई भी योजना का लाभ आप जो है आप जिस बैंक में आपका अकाउंट है उनके माध्यम से भी ले सकते हैं, इस तरीके के प्रोविजन है। Okay. आप बैंक को बात करिए कि हमें सिडबी की ये योजना के तहत आपके थ्रू जो है ये लोन लेना है, तो उसको वो किस तरीके से आगे प्रोसेस होता है वो एंश्योर करिए। They can avail it from any of the bank जहाँ पे भी उनका अकाउंट है। हाँ जी, हाँ जी। Okay.
Next question is from Mahesh JB Qureshi ji. PSB loan in 59 minute is a private entity or what? No, it's a government digital platform. Okay. Okay. Right, sir. Next. अधिकतर चैट बॉक्स में रिकॉर्डिंग के लिए ही जो है Yes, क्वेरी है. yes. Yes. So we will share these recordings with the participants. And how one more question is from Abhilash Nair ji. How much CIBIL score is required for MSME loan? Minimum 750. Is there any scheme for wholesale traders as well, sir? Yes, they have to go for registration under Udyam registration first of all, and they can contact CDB. There is a scheme for loan up to 1 crore rupees for the wholesalers and retailers. Okay. There is a question from Ranjan Chakrabarti ji to Rakesh Sharma. Whether Teleprime would be provided to practicing cost accountants at subsidized rates like chartered accountants. For this, I think Ranjanji, you have to reach out to any preferred partner in your location for more details on this subject. Thanks, Lalit. Right. Rahul Joshi ji का एक question है, where we can check our CIBIL. सिबिल को तो गूगल पर डालिए, सिबिल स्कोर चेक हो जाएगा. paisa.com से जाकर भी चेक कर सकते हैं. बहुत सारी सुविधाएं हैं उसमें. Many websites are providing such facilities. Let me check Q&A as well. The term Rahul Joshi ji का एक question है, the term investment includes what exactly? Land building everything or just plant and machinery? देखिए, ये स्कीम टू स्कीम में वेरी करता है, वो समझना होगा. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिनका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट में हो रहा है, तो उसमें भी फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन बदल जाती है. कहीं लैंड इंक्लूड है, कहीं नहीं है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द स्टेट लैंड जो है वो एक्सक्लूडेड है कॉस्ट में. हाँ, लेकिन फिर भी वो चेक करना पड़ेगा क्या है. Okay, it varies from scheme to scheme कि क्या and state to state. Okay. Sir, I hope Rahul ji we have addressed your query. And another query is from Satyaban Sahu ji. Any scheme for solar system cold storage? That I will have to check up. Sir, am I at the moment I am not aware of it. Okay. Solar based actually. ये solar based cold storage. ना सी देखिए, कोल्ड स्टोरेज अगर आपका है तो उसमें सोलर पैनल्स लगाने के लिए अलग स्कीम्स हैं, उसमें सब्सिडी मिलती हैं. वो अलग अलग स्टेट की अलग अलग स्कीम्स हैं. वो सोलर स्कीम्स ऑफ द स्टेट को आपको स्टडी करना होगा. आप किस राज्य से हैं, वो मतलब उस राज्य की आपको जो है वो सोलर एनर्जी की क्या स्कीम है राज्य की, और उसमें क्या सब्सिडीज मिल रही हैं, क्या फैसिलिटीज मिल रही है, वो आपको चेक करना. Chika, I hope we have addressed all the queries which are listed here. So just to sum up this session, I would like to thanks one again to the entire audience to join this insightful session. And thank you Niranjan ji and Rakesh Sharma for the insightful session. And with this note, we are ending today's session. Have a great day and a healthy and prosperous new year. Thank you, all of you. Thank you to all. Thanks to all the participants.